हनुमान जी पास करा दो, फिर साथ में माता रानी पास करा दो, फिर राम जी पास करा दो, कृष्ण जी पास करा दो. मतलब हनुमान जी भी पूरा बिलीफ नहीं है क्या? विदाउट सरेंडरिंग नो डेटी इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. पर जो मेरा फेवरेट ट्रेनिंग पॉइंट है, मतलब सब लोग जानते हैं कि आश्विन मैम अगर कोई मुझे कहे ना तब आई एम वेरी वेरी गुड एट, तो वो क्या है? मनी. Can law of attraction, can manifestation actually attract financial abundance? A lot of. What is the difference between chasing something and attracting it? See, chasing is something like when the thing is going up आगे जा रही है और आपसे बीच पीछे भाग रहे हो. That's called chasing. Yeah. तो अगर आप चेस कर रहे हो तो आप चेस ही करते रह जाओगे पूरी लाइफ. दिस इज समथिंग ये आपको स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता ना. मैं तो हमेशा बोलती हूँ यार 12 साल तुमने स्कूल में लगाए, बताओ मुझे कौन से चैप्टर में बताया गया कि पैसे ऐसे कमाए जाते हैं. Ma'am, what is a book that changed your life? द मैजिक. आज की लाइफस्टाइल में हम बच्चों को इवन बड़ों को टाइम नहीं मिलता टू सेल्फ रिफ्लेक्ट, टू इंट्रोस्पेक्ट. सबसे पहले तो अगर आप ये बोलते हो टाइम नहीं मिलता तो टाइम नहीं मिलेगा. And I wanted to talk about another one big lesson of yours, that is you should always be grateful and show gratitude to your parents regardless of how they are. Why is that? जैसे आप बोलो कि बट आर यू ग्रेटफुल फॉर योर फादर. Can I manifest on behalf of someone else कि मैं अपने मॉम के लिए, अपने डैड के लिए मैनिफेस्ट करूं, या it only works for yourself? कर तो सब कुछ सकते हो, है ना, परंतु Also, ma'am, I wanted to talk about Gen Z, the new generation that you were connecting to now. Spirituality, finding inner peace, self-reflection, introspection, they're all very far from our lifestyle. Why do you think that gap exists in our generation? whatever time we people take, मतलब in our generation, if I'm taking 8 hours for doing certain job, the Gen Z can complete the same job in 4 or 5 hours. And हमारी generation, Gen Z, we are totally consumed by social media and content. We feel so many different types of energies. What advice would you give us to protect our energy, to protect our peace? पहली बात तो ये सोशल मीडिया में जो आप कंज्यूम कर रहे हो, ये तो आपकी चॉइस है ना. And last question, is nazar real? Hello and welcome to my very own podcast, The Adhiraj Sethi Circle. My name is Adhiraj Sethi, and today we have a special episode because we are diving into something a little different. Something maybe we all need a little bit more of. Spiritual grounding. Joining me today is none other than the incredible Miss Ashmeen Munjal, a spiritual mentor, a manifestation coach, and a community builder who has touched the lives of thousands, if not lakhs, with her teachings on law of attraction, gratitude, and the power of mind. So take a deep breath. Don't forget to like, share, and subscribe. You guys know the drill. Let's dive right into it. Ashmeen ji, welcome. Welcome to the circle. Welcome to the podcast. And thank you so much for giving me your time and coming all the way, making that effort. It really means a lot to me because this opportunity for me to connect you to my audience, which is the Gen Z, the Gen Alpha, it's going to be really helpful for them also to understand what you preach, what you practice. And yeah, let's just start with the podcast if you're comfortable. Yes. So thank you very much for having me here and giving me this opportunity to connect with the beautiful generation, that generation which I say the Gen Z and Alpha, and if they're listening to me, if they're really, really sharing their precious time, precious energy for listening this podcast, I'm rather thankful to them. Most so welcome from this generation. But I think they would love to hear you out. Thank you. And I just wanted to start by saying your energy is already feeling so calm and positive to me, and I'm sure it's going to reflect to them as well. But let's take it back and let's talk about how your spiritual journey started. Was there any particular moment or experience that pushed you towards
this path that you are on right now? I started my journey as cosmetologist around 29 years back. Hanji. Even I would say that was a spiritual journey to me. Why? Because the work I was doing, Hanji. making people look beautiful, was so self-satisfying, was so much giving me a peaceful sleep at night. And I remember even the makeup of brides I used to do. I had a chain of salons and academies where I was training people to make people look beautiful. Hanji. And then myself, I think I had 18 salons at that time, but I was mainly stationed at Ashok Vihar branch. Okay. And in one day I used to do 40-50 brides. Hanji. And sabko sundar banana used to be my passion. Like in the morning I used to start at 6 or 7. Hanji. And in the evening it takes around 10 or 11. And the whole day I'm working, doing makeups and then hair or so. And I remember every day I used to work. By the time I'm exhausted in the evening, but still when I'm sleeping, I'm asleep like a baby. I'm so happy. Hanji. And one fine day, there was so rush. And सबको जल्दी होती है शाम में ना, जल्दी कर दो. And there was a bride, I was doing her makeup and doing her eye makeup. And when I was applying kajal, she started tearing. आंसू आना शुरू हो गया उसको आंख में ना. Okay. So I said कि आपका मेकअप हो गया पर आपका मस्कारा भी मैं नहीं लगा रही क्योंकि आंसू आ रहे हैं आपको. Okay. तो कोई बात नहीं, तब तक ड्रिपिंग करा लो, बाकी काम करा लो, नेल पेंट नेल आर्ट करा लो. बाय द टाइम यू गो बैक तब तक आंख सूख जाएगा. एंड आई पुट द एक आंख पे मस्कारा लग गया है, एक पे नहीं लगा. लैशेस लग गई थी पर मस्कारा नहीं लगा बिकॉज इट वाज टेयरिंग. सो शी सेड ओके. तो वो अपना पूरा तैयार हो गई, पूरा रेडी रूडी हो गई. और बहुत भीड़ थी पार्लर में, तो उसको लेने वाले आए और देखा बड़ी सुंदर लग रही है, वेरी गुड लुकिंग है वो, ये वो करके मुझे पता भी नहीं चला वो तब चली गई. बिकॉज शी वाज लुकिंग वेरी प्रिटी. तो किसी को पता ही नहीं चला कि कुछ ऐसा कम है क्योंकि लैशेस लगे हुए हैं ना एक्स्ट्रा वाले. तो वो चली गई. एंड इन द नाइट आई रिमेंबर आई वाज स्लीपिंग करते करते एकदम से मेरे को लाइक अ घोस्ट अटैक नहीं होता. आई वाज लाइक एकदम मेरी आंखें खुली और मैं उठ के बैठ गई कि अमंग दोस 40 ब्राइड्स शी वाज वन ब्राइड जिसने दोनों आंखों पे मस्कारा नहीं लगवाया था. एक पे लगवाया चली गई. उसने मेरे से टचअप नहीं करवाया था. एंड आई कुडंट स्लीप द होल नाइट. कि मतलब अगले दिन आई हैड टू फाइंड हर नंबर कि जो बिना मस्कारा लगाए चली गई थी. एंड एंड इवन माय टीम कुडंट फाइंड बिकॉज ब्राइड यूज्ड टू कम वंस ओनली. वो एक बार आती है मेकअप कराने. तो वो कहती कौन सी वाली ब्राइड, नाम क्या था. नाम तो मुझे भी नहीं पता था उसका बिकॉज आई वाज डूइंग ओनली हर मेकअप. तो फाइनली अच्छा उसके साथ कोई एक बच्ची भी थी, उसकी बहन थी. कर करके हमने आइडेंटिफाई किया. फाइनली वी गॉट हर बिल एंड देन आई मेड हर कॉल कि उससे पूछ उसका कैसा रहा फंक्शन. तो उसने पूछा, कहती दीदी ऑसम, एवरीवन वाज सेइंग आई एम लुकिंग लाइक सिंड्रेला, I'm looking like so much gorgeous. तब जाके मैंने उस दिन ब्रेकफास्ट खाया because for me my work was like a holistic thing. Like something I'm doing with my passion. और वो जैसे कहते हैं कर्म ही पूजा है. So for me उस दिन मुझे लगा कि मैंने कोई पाप कर दिया है कि अगर मैं अपने काम में कुछ भी आधा अधूरा मैंने काम किया. Although for her it was complete. Fair. But in my side, I know I was not in integrity. So like as you say, spirituality is your own worthiness and your own truthness to your own self. और आप अपने ज़मीर के साथ कितने truthful हो, यही आपकी soul journey है, spirituality की starting है. बाकी सब चीज़ें जो आप बोलते हो वो सिर्फ सुनी सुनाई ड्रामा है. Like you said, your journey began with cosmetology. You have been surrounded with big celebrities like Akshay Kumar, Priyanka Chopra, Hrithik Roshan as well. Salman, Shahrukh, wow. Katrina, take a new. What is that one thing that happened that made you shift from the outer beauty to now the inner beauty? I think every human will go through the same journey. Okay. आपकी एक जर्नी होगी जो आउटर realm में होगी, the visible realm जो दिख रहा है आपको. और अगर आप उस realm के अंदर कुछ rules को follow करोगे तो वो रूल्स अगर आपने ठीक, जिसको कहते हैं ना नियम, जिस एक वर्ड होता है धर्म. हर कर्म का एक धर्म होता है, हर काम का एक धर्म लोगों को लगता है रिलीजन होता है. नो बट आई अंडरस्टूड धर्म एज धर्म जैसे आपका एक फॉर एग्जांपल आप अगर बेटे हो तो आपका एक पुत्र धर्म है. मैं अगर बीवी हूँ तो मेरा एक जिसको कहते हैं ना पत्नी धर्म है. मातृ धर्म, पुत्र धर्म, पत्नी धर्म. हर रोल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक डूज एंड डोंट्स है. अगर मैं पत्नी हूँ तो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये कौन बताएगा मुझे. पत्नी धर्म मेरा है ना. तो धर्म मीन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन. तो
मेरे को हमेशा लगता है हर काम को अगर आप धर्म के साथ, धर्म मीन्स रूल्स रेगुलेशंस के साथ करोगे, इंटेग्रिटी में करोगे, तो हर काम आपको फॉरवर्ड करेगा ही करेगा. तो पहले आपको आउटर रेल्म के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश करना होगा. एंड वंस यू आर रियली डूइंग इंटेग्रिटी एंड डूइंग गुड इन दैट वे, आपको अपने आप यही आपको इनर रेल्म में ले जाएगा, जिसको स्पिरिचुअलिटी का रेल्म बोलते हैं. और स्पिरिचुअलिटी का रेल्म ना कोई हिमालयास पे या गुफाओं में नहीं होता. आई थिंक इफ यू रियली विश टू बैलेंस इट वेरी वेल, यू हैव टू स्टे इन द सेम डोमेन. इसी घर गृहस्थी में रहते हुए, इसी दुनिया में रहते हुए, यहीं के एग्जाम्स को पार करते करते ही आप अपग्रेड होते हो. So this is what I have realized for myself. Yeah, I think that's very deep and well said. Another thing that I wanted to ask you was, you're popularly known as someone who has built such a big community through Shukrana Gratitude Foundation. I personally believe is building a community through spirituality is very unique. What inspired you to do something like this? फर्स्टली तो मुझे पता नहीं, अपने आप ही जुड़ जाते हैं. कम्युनिटी मैंने नहीं बनाई, खुद ही बन गई. लाइक इवन व्हेन आई वाज इनटू माय अर्लियर कॉस्मेटोलॉजी वर्ल्ड, सो वी हैव एकेडमीज, स्टार एकेडमी. वहाँ पे भी वो स्टूडेंट्स अपने आप जुड़ जाते थे. मतलब आई हैड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, एंड कभी हम छोटा सा भी कोई इवेंट करते थे, फंक्शन करते थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल कमिंग एंड एंजॉयिंग एंड रियली बीइंग टुगेदर, एंड एक अपने आप कनेक्शन बिल्डअप हो जाता था. एंड दिस इज एन एनजीओ, राइट? सो दिस इज द शुक्राना ग्रेटिट्यूड फाउंडेशन. ये हमने शुरुआत की थी फाउंडेशन वर्ड के साथ. नाउ आई एम मोर एम्फसाइजिंग ऑन शुक्राना ग्रेटिट्यूड एजुकेशन. आई थिंक फाउंडेशन में लोगों का अलग वे ऑफ बीइंग होता है. एजुकेशन में रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, एग्जाम्स होते हैं. तो अब हम एग्जाम भी लेने शुरू कर रहे हैं. बिकॉज आई थिंक आप यहाँ पे कोई वो कहते नहीं है जैसे भक्ति करने या वो क्या होता है, पाठ, गीता का पाठ होता है, या कोई यहाँ पे प्रीचिंग करने या सुनने नहीं आ रहे हो. आप यहाँ पर कुछ सीखने आ रहे हो, प्रैक्टिस करने आ रहे हो, और एग्जाम भी दोगे. अपनी लाइफ में तो देने ही देने हैं, यहाँ पे भी दो, ताकि हमें पता चले आपने ठीक से सीखे हैं. तो ये हमने शुरुआत करी थी आज से कुछ साल, 6 साल पहले, बिफोर अराउंड कोविड टाइम्स में ना. परंतु बढ़ते 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 ऑनलाइन पे, ऑफलाइन में, दे हैव गॉन इनटू थाउजेंड्स एंड लैक्स एंड ग्रोइंग एट इट्स ओन. एंड पीपल आर, अब तो मतलब बहुत दूर दूर से, मतलब आउट ऑफ, मतलब आई एम वेरी ग्लैड, पाकिस्तान से बहुत अच्छी कम्युनिटी है, ऑस्ट्रेलिया से है, जापान से है, मतलब इंडोनेशिया से है, बहुत अच्छी कम्युनिटी. और वहाँ पे उन लोगों के अपने ग्रुप्स बन जाते हैं फिर, एंड देन दे प्रैक्टिस टुगेदर फॉर द ग्रैटिट्यूड पर्पसेस. तो दैट वे अभी जैसे यूएसए के अंदर अलग अलग, उसमें अलग अलग स्टेट्स के अंदर हैं, वहाँ पर कम्युनिटीज हैं, एंड हर कोई ऑटोनॉमी अपने आप से काम कर रहे हैं. बिकॉज ग्रैटिट्यूड करना है, आप खुद भी कर सकते हो. ओनली थिंग इज फॉलो द मैजिक बुक. सो दिस इज व्हाट मैंने नहीं बनाया, अपने आप बनता चला गया. आप बोलो फिर आपने ग्रैटिट्यूड फाउंडेशन क्यों नाम रखा? इसका रीजन है, पूछो क्या? क्योंकि हमारे ना जब रिट्रीट्स हो रही थी तो पैसे ले रहे थे हम लोग, क्योंकि रिट्रीट्स करने के लिए तो वैसे तो मैजिक बुक तो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है. पर जब आप कोई रिट्रीट्स करते हो तो फिर लोग इकट्ठे करते हैं, पूलिंग करते हैं पैसे ना, तब हम इकट्ठा होटल्स को या वहाँ पे खर्चे को देते हैं. तो वो फिर उसके लिए बैंक अकाउंट खोलना था. तो बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको किसी के नाम पे तो खोलना होगा ना. तो फिर मैंने, और अगर आप नहीं तो बैंक अकाउंट खोलोगे तो टैक्स लग जाएगा. जो हम इनकम आ रही है अंदर, टैक्स ले दो. टैक्स क्यों दे भाई, हम तो आगे पे कर रहे हैं. देन माय सीएस सेड कि आप एनजीओ के नाम पे खोलो, तब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा रिट्रीट्स के उसमें. तो दैट वाज द प्राइमरी रीजन. वी हैड आवर फर्स्ट रिट्रीट इन ऋषिकेश, आई रिमेंबर. जब हमारे को लोगों ने कहा कि, हमने कहा हम वहाँ जा रहे हैं, आ जाओ तुम सब लोग भी. उन्होंने कहा प्लीज हमारा रहना खाना पीना सब आप ही पहले से बुक कर दो ना, देन इट्स अ रिट्रीट. तो फिर हमने कहा अगर पहले से बुक करना है तो पैसे तो पहले से देने पड़ेंगे. तो फिर वो एक पूल करने पड़े सबको ना अपने पैसे. तो वो आई स्टिल रिमेंबर कितना हमने फटाफट करके इसको हमने रजिस्टर किया है और बैंक अकाउंट खोला. तो दैट वाज द ओरिजिनल थिंग. तो जब किसने बोला, तब हमें शुक्राना ग्रैटिट्यूड भी नहीं पता था. उन्होंने बोला बैंक अकाउंट खोलना है किसी नाम से. तो हमने कहा क्या नाम रखे. तो हम प्रैक्टिस करते थे शुक्राना की, और जो बुक हमें सिखा रही थी ग्रैटिट्यूड की, तो हमने कहा शुक्राना ग्रैटिट्यूड क्या रखें. किसी ने बोला दोनों रख लो. So this is how the whole thing started. Wow. Also, ma'am, I wanted to ask, आज की लाइफस्टाइल में हम बच्चों को, इवन बड़ों को टाइम नहीं मिलता to self reflect, to introspect. I wanted to ask you what
you would like to say that is the true meaning of spirituality, finding yourself, finding your inner peace. आप क्या बताते हो लोगों को and what do you think it means? सबसे पहले तो अगर आप ये बोलते हो टाइम नहीं मिलता तो टाइम नहीं मिलेगा. True. मतलब in our practice there is a beautiful practice which is called if you are grateful for something you will be given more of it. Okay. If you are not grateful for something or even if you are complaining or nagging about it, even what you have will be taken away from you. तो अगर आप बोलोगे टाइम नहीं मिल रहा तो ये क्या है, कंप्लेंट है कि ग्रैटिट्यूड है? Okay, it's a complaint, yeah. मतलब आप बोलो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता, टाइम निकालते नहीं है हम, let's say that. नहीं, पर आप बोलो मेरे पास बहुत टाइम है, अच्छा, मैं जो करना चाहता हूँ मेरे पास बहुत टाइम है. बहुत आपको time शुरू शुरू में नकली लग सकता है बट इट्स ओके. Okay. एंड यू से आई एम ग्रेटफुल फॉर द टाइम आई हैव फॉर माय फिटनेस, फॉर माय पेरेंट्स, फॉर माय फ्रेंड्स. आई हैव इनफ टाइम एंड आई एम रियली ग्रेटफुल. Yeah. यही 24 घंटे आपके लिए इतने ज्यादा एक्सपेंड कर जाएंगे बिकॉज टाइम इज नॉट अ टेंजिबल थिंग ना. Yeah. टाइम इज अ एक्सपीरियंस. Yeah. आप हैरान, मतलब ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है कि थिंग्स विच आर टेंजिबल वो भी इसी रूल के अंडर आते हैं. इवन अनटेंजिबल इंटेंजिबल थिंग आल्सो कम अंडर द सेम रूल. तो टाइम को आप जितना ग्रैटिट्यूड करते हो, थैंक यू मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आराम से नहा सकता हूँ, थैंक यू इस टाइम के लिए कि आज मैं बैठकर बातचीत कर रहा हूँ, तो आप टाइम को ग्रैटिट्यूड करो. टाइम इज इक्वल टू काल, Okay. जिसको हम कहते हैं समय. Okay. काल Okay. अगर आप समझे बहुत पावरफुल चीज है टाइम. जी. टाइम बहुत पावरफुल चीज होती Yeah, है. yeah. एंड व्हेन वी ट्रेन आवर पीपल वी ट्रेन इनटू टाइम जोन्स एज वेल. Okay. मतलब ये अलग ट्रेनिंग होती है. जैसे ग्रैटिट्यूड एक पैरेलल ट्रेनिंग है, टाइम एक अलग पैरेलल ट्रेनिंग है. Okay. क्योंकि टाइम आपके फेवर में भी हो सकता है ना, इसका वक्त बड़ा बलवान है, इसका वक्त जो इसका टाइम इसका बड़ा फेवर में चल रहा है, इसका टाइम इसका दुश्मन है, इस समय इसका टाइम ठीक नहीं चल रहा. तो एवरीथिंग जो आप बोल रहे हो एक्चुअल में आपकी लाइफ के अंदर आप इसको बना भी सकते हो, खराब भी कर सकते हो. तो ये भी एक ट्रेनिंग होती है जब हम कोर्सेज ले रहे होते हैं. तो आपने अभी जैसे बोला ना, तो आप सबसे पहले जो भी जेंजी है I need बोलो to join the हाँ, बिकॉज दिस इज समथिंग आपको स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता ना. हाँ जी. मैं तो हमेशा बोलती हूँ यार 12 साल तुमने स्कूल में लगाए, बताओ मुझे कौन से चैप्टर में बताया गया कि पैसे ऐसे कमाए जाते हैं. True. Yeah, no one tells you how to get rich. They just tell you what job you can do. बट इवन जो वो पढ़ा है वो जॉब में भी कैसे आपको हेल्प कर रहा है, मुझे तो आज से समझ नहीं आया. Basics बना देता है. 12वीं तक पढ़ाया, उसके बाद जो मैं जैसे मेकअप आर्टिस्ट थी तो मेरे को तो कुछ नहीं सिखाया उन्होंने. देखा जाए तो मैं हमेशा कहती हूँ स्कूल्स में ये एक सब्जेक्ट एडिशनली ऐड करना चाहिए. जो कि आपकी लाइफ में आपको अपने मम्मी पापा के साथ कैसे हार्मनी में रहना है, या अपने मियाँ बीवी को कैसे अपने रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग लानी है. ये कौन से सब्जेक्ट में सिखाया गया? आपकी जिंदगी के मूलभूत आधार क्या है? आपके रिश्ते, आपका करियर, आपको सोसाइटी कैसे जज करती है, पैसा कितना कमाते हो, आपका पैकेज कितना है. सोसाइटी इस पैरामीटर पे जज कर रही है और पूरे स्कूल कॉलेज में हमें किसी सब्जेक्ट में सिखा नहीं रहे हो तुम ये. फिर बच्चे को बाद में ब्लेम करते हो. तो मतलब ये गलत बात है ना. तो सिखाना चाहिए था ना स्कूल में, लाइक कि करियर में भी सिखाना चाहिए था कि अपने पैशन के अकॉर्डिंगली अपना राइट करियर कैसे चूज करना है. हमें तो टैक्सेस फाइल करना भी नहीं सिखाते. मैंने तो कुछ भी नहीं सिखा. देखा नहीं, आई रियली आई एम ग्रेटफुल फॉर द एजुकेशन system we have because I'm not in a way to complain about anything, but I'm saying that I'm grateful for the education, whatever I am today is because of the education. But what we can really add on is like the right learnings of life, which is really मतलब रिश्तों को चलाना, करियर चलाना, अपनी सेहत को चलाना. आपको नेम फेम कमाना है, ये भी बता देनी है, फिर बाद में पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहो इसी चीज के अंदर. तो दिस इज समथिंग एक बच्चे को एक्चुअली में क्या चाहिए. देखिए हो सकता है आपको नेम फेम अट्रैक्ट करता हो. मैंने कितने लोग दुनिया में ऐसे मिले हैं जिनको नेम फेम से मतलब ही नहीं होता. उन्हें ये चाहिए, जो भी चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा, कुछ और उनको वो आपको आप ये काम कर लो, आपको इतने सारे फॉलोअर्स मिलेंगे, इतना सारा आपकी पब्लिसिटी होगी, तू रख. उन्हें चाहिए ही नहीं. किसी को पैसा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, पर जिसको जो चाहिए अकॉर्डिंगली दे शुड बी ट्रेन्ड हाउ टू रीच देयर सो दैट दे फुलफिल द आउटर रेल्म रिक्वायरमेंट. True. And I wanted to talk about another one big lesson of yours, that is you should always be grateful and show gratitude to your parents regardless of how they are. Why is that? I always say if you're born on this planet, you're born for a purpose. And मतलब आप बिलीव करें चाहे ना करें, बट जब आप पैदा होने वाले होते हो उससे पहले यू आर गिवन अ चॉइस
टू चूज योर पेरेंट्स, Okay. जो कि ऑब्वियसली हम बाद में भूल जाते हैं जब हम पैदा हो जाते हैं उसका भूल जाते हैं. यू आर गिवन अ चॉइस कि आप कौन से जगह डेमोग्राफी में पैदा हो रहे हो, बिकॉज एज पर द मिशन यू आर ऑन, एज पर द lesson you are here to learn, Okay. accordingly you are choosing your parent at that time before your birth. Okay. वो सेट ऑफ पेरेंट आप चूज कर लेते हो, बट वंस यू हैव चूजन, आप पैदा हो जाते हो, उसके बाद आप भूल जाते हो कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, आप या क्यों करने आए हो, और ये पेरेंट आपने चूज करे सब भूल जाओगे आप, बिकॉज नाउ योर माइंड विल बी फ्रेशली स्टार्टिंग, टोटली फ्रेश. तो गड़बड़ हम क्या कर देते हैं वहाँ पे कि हम भूल गए ना, तो हम उन्हीं पेरेंट्स में कई बार अपना कुछ नेगेटिव ट्रेट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं. Okay. जबकि एक्चुअल क्या है, आप अपना डीएनए भी चेक करोगे, योर डीएनए इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर बायोलॉजिकल फादर एंड मदर. Yeah. आप जितना मर्जी उनसे दूर हो लो, जितना मर्जी उनसे डिस्टेंस कर लो, नेगेटिव हो लो, but they are always within you. Yeah, they're in because your blood. you're made up by them. Yeah. Okay, so you Yeah. can't refuse it. Yeah. तो अब now the thing is, if you understand the science, जैसे कि सिंपल साइंस है, गंगा जी निकल रही हैं, तो गंगा जी कहाँ से निकल रही हैं? गंगोत्री से. उसी तरह से आपकी जीवन धारा जो है वो आपके बायोलॉजिकल फादर और मदर में से ही आई है. Okay. ठीक है, तो अब आप जिंदगी में जहां जहां भी जाओगे ये आपके साथ साथ चलेगी. Okay. आप शादी कर लो, आप 7 समुंदर पास जाके सेटल हो जाओ, यू कैन नॉट एस्केप इट. द सिंपल थिंग है. अच्छा, वो जिंदा हो या ना हो तब भी यू कैन नॉट एस्केप इट, क्योंकि वो आपके अंदर है. नाउ द थिंग इज, द बिगेस्ट पिटफॉल व्हिच ह्यूमन इज फेसिंग नाउअडेज, अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो उनके बारे में, अगर आपको लगता है कुछ नेगेटिव ट्रेट्स हैं और आप उस नेगेटिव ट्रेट्स को सोचते हो, या आपका एक्सपीरियंस उनके बारे में किसी भी वे में पॉजिटिव से कम है, तो आपकी जो भी करंट लाइफ जो आप जी रहे हो उसके अंदर नेचुरली, वो कहते हैं ना, जैसे गंगा जी में कोई कूड़ा है, आप हरिद्वार में हो, कूड़ा है, अब बार बार कूड़ा साफ करो, जैसे आजकल गंगा यमुना जी की सफाई चल रही है, तो वैसे गंगा जी की सफाई करी जा रही हो, पर कूड़ा आ कहाँ से रहा है? गंगोत्री से. अब गंगोत्री से कूड़ा आ रहा है, आप सफाई कर रहे हो नीचे हरिद्वार में, जितनी मर्जी सफाई करते रहो वो तो आता ही रहेगा कूड़ा. तो अगर आपको सफाई करनी है तो ऊपर जाके सफाई करनी पड़ेगी आपको गंगोत्री पे. सिमिलरली आपका जो भी एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ में अपने फादर के लिए, जो भी आप उनके बारे में आपका मेजर एक्सपीरियंस है, आप अपनी जिंदगी में जितने भी मेल आदमी लोगों से कम्युनिकेट करते हो या उनके साथ जो भी डील करते हो, वो एक्सपीरियंस वहाँ रिफ्लेक्ट अपॉन जरूर करता है, इन लोअर और बिगर डिग्री. सिमिलरली जो आपका एक्सपीरियंस अपनी मम्मी के साथ है, देखिए एक्सपीरियंस जो भी है वो आपने मीनिंग बनाया है, उन्होंने जो कहा किया वो उन्होंने कहा और किया, पर आपके पास हर मोमेंट पे चॉइस होती है कि आप एक नया मीनिंग बना सकते हो. मीनिंग मतलब हाउ यू थिंक एंड फील अबाउट इट, वो आपकी चॉइस है. उनके बारे में बुरा भी बहुत सारा इकट्ठा कर सकते हो. एंड व्हाट आई टीच माय स्टूडेंट्स इज कि आप चाहे 2 चीजें ढूंढो जो उनके बारे में अच्छी थी. व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर योर फादर, जैसे आप बोलो कि व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर योर फादर. He has worked his whole life to provide me with so much. And what so much means? Give me a few name of the things he provided. He's given me shelter, he's given me knowledge, he's given me comfort. Yeah. So, and another thing I'm very grateful to Papa about is that he's always put me on the right path whenever I feel misguided. I always go to him, ask him what should I do, and he tells me his honest opinion, no matter if I like it or not. So I'm grateful to him for that. Yeah. So if you start just being grateful for few minutes in your day, मैं अपने फादर के जैसे आपने बोला कि I'm very grateful for Papa for giving me right guidance. I'm grateful to Papa for giving me shelter. I'm grateful to Papa for giving me all these facilities. जो भी आपको लगता है, truly, education हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, आप सिर्फ 10 ग्रेटिट्यूड पापा के लिए लिखो. रोज लिखना और बोलना है आपने, है ना, मुंह से, मतलब अब कॉपी में लिखते लिखते साथ साथ बोल दो. उनको जाके बोलने की जरूरत नहीं है. आपके अंदर वो फीलिंग आनी चाहिए कि आप ग्रेटफुल हो. एंड सेम गोज फॉर मम्मा. आपकी दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें, सी हम ना एक साइंस होती है शिवा शक्ति, यिंग यांग जिसको बोलते हैं, जिसको मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बोलते हैं, या हर चीज हर चीज जो है वो इन्हीं 2 एनर्जीज का कॉम्बिनेशन है. मतलब कि जिसको आप कहते हो डार्क एंड लाइट. ओके, तो आपके अंदर जो एनर्जीज है डार्क एंड लाइट, या आप यिंग यांग बोल लो, शिवा शक्ति बोल लो, वही आपकी मदर और फादर है. वो उन्हीं के थ्रू आपके अंदर तक अंदर आई हैं. ठीक है, तो आप जब अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करना शुरू करते हो अपने फादर के लिए, तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज और मैस्कुलिन जितने भी एनवायरनमेंट में एनर्जीज है, आप अट्रैक्ट जो करोगे वो सब पॉजिटिव करना शुरू कर दोगे. बिकॉज एनर्जी की दुनिया के अंदर बहुत बड़ी एक फॉर्मूला होता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक.
Okay. समान चीज समान को अपनी तरफ आकर्षित करती है. Okay. तो आप किस एनर्जी में हो, अकॉर्डिंगली उस तरह के लोग, एक्सपीरियंसेस, उस तरह के हालात आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे. Okay. तो आपके फादर के साथ जो आपका एनर्जी कनेक्शन है, आप इसको पॉजिटिव करो बाय बीइंग ग्रेटफुल. मदर के साथ जो आपका एनर्जी कनेक्शन है, इसको आप ग्रेटफुल कर लो. ये दोनों अगर पॉजिटिव हो जाते हैं, आपकी जिंदगी का 50% चैनल आप बिकॉज वो तो पीछे से ही आ रहा है ना, बाकी तो आपने बनाया है, पर पीछे से भी आ रहा है. ये अपने आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है. Okay. मतलब रोशनी में आना शुरू हो जाता है. Okay. तो आपकी जो आपके फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ जो भी एक्सपीरियंसेस इसके बाद होने शुरू होंगे, यू विल बी अमेज्ड. Okay. मतलब जितने भी लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, बट आई एम सेइंग सक्सेसफुल इज नॉट ओनली मटेरियलिस्टिक बट इंटरनली एज वेल. कई बार इतना किसी को प्रूफ करने के लिए, फादर को प्रूफ कर रहे हैं या किसी को प्रूफ करने के लिए मेहनत करी जा रहे हैं, पैसा कमाई जा रहे हैं, पर क्या आपको सच में फीलिंग है यू आर अकम्प्लिश्ड? वो फीलिंग कि आपने कुछ किया है, अकम्प्लिश किया है, वो तब तक आ ही नहीं सकती जब अब तक आप अपने सोर्स के साथ कनेक्ट प्रॉपर पॉजिटिवली नहीं होगे. वरना पूरी ज़िंदगी आप कमाते रह जाओगे, पर लगेगा अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो कुछ कमाया ही नहीं है. ये वाली जो फीलिंग है कंटेंटमेंट की या सेटिस्फेक्शन की, इट कम्स फ्रॉम योर सोर्स रिलेशनशिप. एंड इट्स नॉट अबाउट हाउ दे आर. वो अच्छे हैं नहीं है, बुरे हैं नहीं है, उन्होंने आपके साथ क्या किया, वो मैटर नहीं करता. वो उनके कर्माज हैं. वो अपने कर्म पीछे से ला रहे हैं और अभी भी वो अपने कर्म जी रहे हैं. आपने उनके लिए कैसे अपनी भावना बनाई, आपने अपने लिए कैसे उनके ग्रैटिट्यूड को क्रिएट किया, ये आपके कर्माज हैं. Wow. And I always say every human is responsible for only his or her own karma. आपको अपनी जिंदगी वैसी चाहिए ना, स्वर्गो वाली, तो आप रूल को सही से फॉलो करो. Okay. आप रूल को सही से सीखो. कई बार लोग कहते हैं उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो बुरा कर दिया, वो तो है ही ऐसे, बहुत बुरे हैं, ये डांट दिया, बुरा कर दिया, सबके सामने इंसल्ट कर दी. वो उनके कर्म है. You can't change it. Fair. But you can change whatever you are going to get in your life. Yeah. So अभी तो शुरुआत है, and then we go deeper and deeper into practices and elaboration. Okay. Also, ma'am, I wanted to talk about Gen Z, the new generation that you were connecting to now. Thank you. I feel like spirituality, finding inner peace, self-reflection, introspection, they're all very far from our lifestyle. Why do you think that gap exists in our generation? See, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि I'm dealing in my life so oftenly. हाँ जी. Because I am dealing with so many Gen Z and Alpha, beautiful kids, and I feel they're highly talented people, highly caliber and highly capacity. मतलब the kind of if they're working on any project or say in any work, whatever time we people take, मतलब in our generation, if I'm taking 8 hours for doing certain job, the Gen Z can complete the same job in 4 or 5 hours. हाँ जी. And properly they can complete it. Yeah. And then they're sitting. then what will they do? They will swipe the phone or do something. They're occupied in some tech or something. Some लोगों लगता है साथ ही फोन पे लगे रहते हैं. They don't know कि इनको आप जो काम दोगे, they can do it in a lesser Efficient, quantity of time. And now the thing is, my most जो मैंने देखा कि अच्छा फिर इनको, because this is what they have earned in their life, they have earned the timeness. आपने बोला उनके पास टाइम नहीं है, मुझे लग रहा है इनके पास टाइम है, पर इनको कैसे यूटिलाइज करना है, कहाँ फोकस करना है, इसकी गाइडेंस की जरूरत है. टाइम तो है इनके पास, क्योंकि इनके पास घर है. देखिए, आई सॉ मूवी अ फ्यू इयर्स बैक, बड़ी ही कमाल की मूवी थी, शायद टाइम ऐसे कुछ नाम था. उसमें यहाँ हाथ में ना घड़ी बनी हुई है. You have to pay using the time that you have remaining. आपने गाड़ी खरीदनी है तो आपको टाइम पे करना है, आपने घर खरीदना टाइम पे करना है. तो एक्चुअली हम अपनी जिंदगी में हम जो भी पाना चाहते हैं, हम हमारे पास लिमिटेड सांसें हैं, लिमिटेड टाइम है. वी आर बोर्न हियर विद काउंटेड ब्रेथ, गिन के मिली है हमें, और हम पूरी जिंदगी इतना टाइम लगा दिया ताकि एक दिन घर बना पाऊँ, इतना टाइम लगा लिया मैं अपनी पसंद की गाड़ी खरीद पाऊँ, रंगीन टीवी खरीद पाऊँ, छुट्टियों पे जा पाऊँ, कमाने में टाइम लग गया, नौकरी पर टाइम लग गया. तो उस हिसाब से जो जेन ज़ी है इसके पास टाइम ज़्यादा है, क्योंकि ये वही काम जल्दी कर लेते हैं. इनको घर नहीं बन, मोस्ट ऑफ देम, आई एम नॉट ऑल ऑफ देम, बट इनका घर कुछ चीज़ें सॉर्टेड है, पहले से सॉर्टेड है, तो इनको वहाँ टाइम नहीं अपना खर्च करना पड़ रहा ना. तो नाउ व्हाट आर दे गिवन टाइम फॉर? क्वेश्चन यहाँ आएगा कि अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम्हारे को वेस्ट भी उन चीज़ों पे नहीं लगाना पड़ रहा कंज्यूम, तो व्हाट आर यू बोर्न फॉर?
the whole thing is what I have seen in my life, even जहाँ मैं भी पहुंची हूँ आज, I had my own journey, but I always wanted to reach somewhere. मैं कुछ खोज रही थी, कुछ पाना चाह रही थी जहाँ तक मुझे पहुंचना था. Gen Z के पास जो एक क्वेश्चन है which I feel they should have is finding something. really exploring something. कुछ भी नहीं. अगर इस समय आप फॉर एग्जाम्पल आप इस समय कोई वर्ड का मीनिंग भी ढूंढना चाह रहे हो, want to find a meaning of a word. Okay. So in our life, in our times, we used to find into dictionary, या हम ढूंढते थे, पन्ने पलटते थे, फिर उसमें alphabetically आगे जाते थे. So that process used to give us some kind of training. तो अभी right now if you are not finding, आपको बोला हाँ आपने सीधा गूगल पर डाला, गूगल फाइंड करके दे देगा. आप बोलोगे फाइंड तो कर दिया ना, but that will take you away from your own training of being curious, of being someone जिसको कहते हैं जिज्ञासु. Because the journey जो है लाइफ की, but I have felt जिन खोजिया तिन पाइया. तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और आप उसका आंसर ढूंढने जा रहे हो, अगर जैसे आपने बोला कि स्पिरिचुअलिटी हो गया, इंट्रोस्पेक्शन हो गया, इंट्रोस्पेक्शन इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग योर ओन सेल्फ. पर एक्सप्लोरिंग बिगिंस विद क्वेश्चन कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करना है. of finding, right? That's what's missing. I think that is only one point missing in the new generation. And if they just connect, एक तार बस जोड़ दो ये वाली कि being in the curiosity zone and finding things, तो सब कुछ आपके आसपास ही है. You are just one point away from all these things available to you. Wow. So and this is what you have earned in the last so many जन्म. मतलब ऐसे नहीं है Gen Z ऐसे इतने luxuries में पैदा हुई है. Yeah. Because ये बहुत मेहनत करके आई हुई generation है. Okay. So all the thing is now take this time and these luxuries towards your own benefit and towards your own achievement of purpose of life. Okay. Also, ma'am, I wanted to say that a lot of people these days are chasing goals like money, fame, success, but you talk about attracting these things instead of chasing it. What is the difference between chasing something and attracting it? Because many a times we get to hear that if you don't even think about it, if you don't even want it, it will not come to you, right? But I feel confused that is that me chasing it or is that me attracting it? See, chasing is something like when the thing is going up आगे आगे जा रही है और आपसे बीच पीछे भाग रहे हो. That's called chasing. Yeah. तो अगर आप chase कर रहे हो तो आप chase ही करते रह जाओगे पूरी life. Okay. And then there is a science, there is a proper practice by which you are doing the practice and the thing is coming towards you. Okay. मैंने अपने life में ये note किया है पैसों की दुनिया में. When I started my business in my मेरे घर में ही फर्स्ट फ्लोर पे मैंने एक कमरे के पार्लर से स्टार्ट किया था अपना काम. उससे पहले मैं हाउस वाइफ थी. आई हैड अ डॉटर एंड द होल गेम वाज कि my daughter was 1 year old. It was her first birthday and मुझे उसके लिए ड्रेस खरीदना था. I went to मॉडल, हमारे घर के पास मॉडल टाउन है अशोक विहार के पास ना, तो वहाँ पे एक शोरूम में मैंने बाहर एक डमी को ड्रेस पहने देखा. I wanted to buy it but when I knew the price तो I couldn't afford it because it was a little expensive than my budget. और मैं पीछे गलियों में नहीं होता जहाँ गत्ते के, आपने नहीं देखा होगा न्यू जनरेशन, वो डब्बों में कपड़े मिलते हैं. जो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं यहाँ पे हैंगर्स में टंगे होते हैं. जो छोटी छोटी दुकानें होती है वहाँ पे ऐसे डब्बों में खोल खोल के दिखाते हैं कपड़े. तो आई हैड टू सेटल डाउन माई सेल्फ फॉर अ ड्रेस फ्रॉम दैट शॉप. बट दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज नहीं, मुझे अपनी लाइफ में पैसा इतना होना चाहिए कि मैं जो खरीदना चाहती हूँ मैं खरीद पाऊँ. और मेरे बच्चे भी जो भी वो चाहते हैं उनकी लाइफ में वो अवेलेबल हो. बिकॉज आई वॉज मैरिड इन टू अ गुड फैमिली बट इट वॉज अ जॉइंट फैमिली. जैसे इन लॉज थे, जेठ जेठानी, देवरानी सब थे. तो पैसा तो था पर सबको पॉकेट मनी की तरह मिलता था, सबको बराबर मिलता था. तो वो बराबर में ये होता था कि मतलब आपको मांगना पड़ेगा अगर एक्स्ट्रा चाहिए. तो वो मांगना मुझे बड़ा एम्बैरसिंग लगता था. तो मुझे ये लगता था कि यार उनके खर्चे कम होंगे, उनका पूरा पड़ जाता है. मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा हल्का सा लैविश था. तो अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनना, ब्रांडेड पहनना, मतलब बच्चों के लिए भी ना. तो दैट में मुझे लगा ना अब तो कुछ करना पड़ेगा. सो दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई रियली स्टार्टेड थिंकिंग कुछ तो करना है, कुछ तो अपने से कमाना है. देन क्या कर सकते हो, मैंने हस्बैंड से पूछा. उन्होंने कहा कि देखो घर से बाहर तो आप जा नहीं पाओगे, नौकरी तो कर नहीं पाओगे, जो भी करना है घर पे रह के करना है आपने. मैं सुबह शोरूम पे जाऊंगा, ही हैज दिस शोरूम इन सदर बाजार गिफ्ट आइटम. तो आप उसके बाद जो मर्जी करो, मेरे आने से पहले जो मर्जी करो. तो
मोटा मोटा 10 to 7 का टाइम था। Okay. तो मैंने घर पर रह के क्या कर सकते हैं यार, ट्यूशन सेंटर कर सकते हैं, बुटीक खोल सकते हैं, पार्लर खोल सकते हैं वगैरह वगैरह। एंड लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, फाइनली आई ओपन्ड द लॉन एंड I was very clear कि I have to earn in a way कि I'm self-sufficient. So how did you attract it instead of chase it? Because अगर मैं पैसे के पीछे भागती, क्लाइंट को बुद्धू बनाती, there are certain core values. जैसे हम अभी तो ग्रेटिट्यूड पे फोकस कर रहे हैं, बट आपकी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ये सब बोलने की बातें नहीं होती हैं। अगर आप जिंदगी में सच में वो बनना चाहते हो कि यू बिकम अ मैग्नेट फॉर अट्रैक्टिंग व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट, तो वो मैग्नेट आपके अंदर ही है। और आपका ज़मीर आपको हमेशा गाइड कर रहा होता है कि क्या चीज़ करने से आप एम्पावर हो रहे हो, क्या चीज़ करने से आप डिसएम्पावर हो रहे हो। Okay. इवन इन स्मॉल थिंग्स लाइक गोइंग आउट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो, आप ये पी रहे हो, खा रहे हो, जो भी कर रहे हो, 1 मिनट के लिए सोचो अपने ना, जस्ट बी इन सम सॉलिट्यूड, किसी वॉशरूम में चले जाओ और अपने आप से पूछो, ओके मैं रात को घर से बाहर हूँ, ये बाहर ड्रग्स ले रहे हैं, मैं ड्रग्स ले रहा हूँ, तो इट्स ओके। अपने आप से पूछो, फाइंड द आंसर विद इन योर सेल्फ, इट्स ओके। अगर सबको पता चल जाता है दुनिया में, पापा मम्मी को या किसी को, इज इट ओके? अगर अंदर से आवाज है हाँ इट्स ओके, देन गो फॉर इट। पर अंदर से आवाज आ रही नहीं, ये तेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तेरे ऑर्गन्स के लिए अच्छा नहीं है, मम्मी पापा को पता चलेगा तो हमारी रिपुटेशन के लिए भी अच्छा नहीं है, तो आपका अंदर कोई ना कोई है जो आपको हर समय आंसर दे रहा होता है, वेदर इट्स गुड और नॉट गुड, यही पॉजिटिव नेगेटिव का। तो मैं हमेशा ना इस आवाज़ को सुनने के लिए कोशिश करती हूँ। अगर मेरे को, जैसे हमारे इंडस्ट्री में बहुत होता है कि किसी को कहते तुम ये हो कि ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो पर कर कुछ और यूज़ रहे हो, क्लाइंट को थोड़ी ना पता चलेगा, कई बार लोग ऐसे कर लेते हैं। तो मैं अपने आप से पूछती थी, डू यू वांट टू डू दैट? डू यू वांट टू मेक अ फूल ऑफ क्लाइंट? मतलब ठीक है कमाई ज़्यादा हो जाएगी, मार्जिन ज़्यादा है, बट यू वांट टू डू दैट? और मेरे अंदर से आवाज़ आती थी कि तू उतना ही कमा जितना कि ऑनेस्टी से कमा सकती है, कोई बात नहीं। ऑल दीज, जब आप अपने इनर सेल्फ को सुनना शुरू करते हो, इनर वॉइस को सुनना शुरू करते हो, इट विल गाइड यू टुवर्ड्स ईच एंड एवरी बिग थिंग ऑफ योर लाइफ, एंड देन यू बिकम अ मैग्नेट। यू रियली स्टार्ट अट्रैक्टिंग थिंग्स इन अ वेरी बिग वे। अभी भी आप अट्रैक्ट कर ही रहे हो, पर आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हो? आप अच्छा भी अट्रैक्ट कर रहे हो, बुरा भी अट्रैक्ट कर रहे हो, दोनों आप ही तो अट्रैक्ट कर रहे हो। बुरा क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो? जब भी आप गलत रास्ते पे जाओगे, बैड एनर्जीज बनाओगे, बुरा अट्रैक्ट करोगे। आप सही रास्ते पे जाओगे, गुड एनर्जीज बनाओगे, आप अच्छा अट्रैक्ट करोगे। एंड बीइंग ग्रेटफुल इज समथिंग विच ऑलवेज गाइड यू टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ योर लाइफ। तो मैं बिलीव करती हूँ अगर मैंने अट्रैक्ट करना है कुछ, तो मुझे पहले रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और जब हम ग्रैटिट्यूड के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, मैनिफेस्टेशन के, एफर्मेशंस के रूल्स को समझते हैं, तो आप खुद ब खुद अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। यू आर ए मैग्नेट ऑलरेडी। आप चेजिंग क्यों कर रहे हो? You are a magnet, but the whole thing is कि you know that you are the magnet of the things you want in your life. ओके तो ये एक अपने आप में साइंस होती है जिसको हम समझते हैं और बताते हैं, कई बार सिखाते भी हैं। एंड मैंने भी जब इसको यूज़ किया अपनी लाइफ में, सब कुछ अट्रैक्ट किया है जो मैं पाना चाहती हूँ, सक्सेस, करियर, पॉडकास्ट nowadays। तो मतलब मेरे को आजकल लगता है कि जो हम सीख रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी ह्यूज क्वांटिटी ऑफ पीपल आर प्रैक्टिसिंग, बट आई रियली वांट जो यंग जनरेशन है, दे आर, मतलब आई लव द यंग जनरेशन। मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे, इनके एनर्जी से, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। दे आर वेरी क्लियर। जितना मैं उनको जानती हूँ, उनको बस क्लैरिटी का फोकस चाहिए होता है, बाकी दे आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ, वेयर टू गो फॉरवर्ड, एंड द वे दे आर अर्निंग और दे वांट टू अर्न और दे वांट टू सी बिग ड्रीम्स। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो बड़े सपने देखते हैं। मतलब कोई मुझे पूछे ना कि व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, आई एम पैशनेट अबाउट ड्रीम्स। मैंने जिंदगी में जो सबसे ज्यादा चीजें, मतलब कहते हैं ना, जो मैंने अपने लिए बनाई हैं, कमाई हैं, वो है मेरे सपने। और अभी भी मेरा सपना ही है कुछ ना कुछ जिसके लिए मैं आगे आगे बढ़ती हूँ। तो पुराने जमाने के लोगों से पूछ, अरे सपने छोड़ो, ये बेकार की बात होती है, मतलब विजन, गोल, डिजायर, this is something I am very very passionate about. I think my mom is also just like that. She's a dreamy person. मतलब एक देखो, एक होता है ड्रीम, डिजायर, एक होता है हवाई किला बनाना या फिक्टिशियस, हवाई किला। आई ऑलवेज से सपना देखो और अब उसको पूरा करने के लिए जुट जाओ विद द राइट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस और एजुकेशन जो कि उस तक पहुंचाएंगी आपको। तो कई बार जब मैं यंग जनरेशन को सुनती हूँ, स्पेशली स्टार्टअप्स के अंदर, जैसे कई बार लोग, इनके विजन्स कितने ब्यूटीफुल होते हैं।
मतलब the kind of difference they are making in society or they want to make a difference Yeah, at least. yeah. तो उनको बस वो प्रैक्टिस ठीक करनी है अपनी, वो सब कुछ उनको क्लैरिटी से सब क्लियर हो जाएगा. और कहते हैं ना, मैं नहीं कह रही, सब लोग कह रहे हैं कि सतयुग इज अबाउट टू कम, यू नो, दिस इज संगम काल चल रहा है. अभी हम कलयुग में हैं, कलयुग में पैदा हो रहे हैं सब लोग. कलयुग इज अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम जोन. कई लोगों को लगता है कलयुग है, घोर कलयुग है. अरे कलयुग मीन्स काल का युग, मतलब अंधेरे का युग. हर चीज यहाँ पे फास्ट है. जिस काम को करने के लिए पहले आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना होता था, तो कितना चलना पड़ेगा, कितना जाना पड़ेगा, कितने दिन लग जाएंगे. आजकल आप 4 घंटे में पहुंच सकते हो दूसरी कंट्री में, फास्ट. पहले आपको अगर लेटर कम्युनिकेशन के लिए लेटर्स होते थे, अब देखो SMS या मैसेज फास्ट विद इन फ्यू सेकंड्स. पहले किसी को दिखना होता था तो मतलब आपको देखे देखे सालों बीत गए, अब आप वीडियो कॉल करो फास्ट. तो एवरीथिंग हैज बिकम सो फास्ट. तो अगर मटेरियलिस्टिक सब चीज़ें इतनी फास्ट हो गई है, फास्ट फूड आ गया है एंड एवरीथिंग इज फास्ट, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी या आपकी इस दुनिया के अंदर भी तो ये रूल अप्लाई होगा. जहाँ पहले आपको 400 साल तक फलाने ऋषि मुनि ने हिमालय पे तपस्या करी तो जाके उसको प्रज्ञा मिली या ज्ञान मिला, यहाँ पे फास्ट है. द ओनली थिंग इज यू नीड टू नो द रूल इन द राइट वे. हर मतलब जो काम करने में जो 400 साल लेते थे, you can achieve that within one lifetime over here. So that's why Kalyug is a beautiful time zone. And इसको हार्नेस करते हुए, उसकी जो एनर्जीज है उसको हार्नेस करते हुए, इसके बाद तो सतयुग ही आना है. तो सतयुग कौन लाएगा? यही जेनजी लेके आएगा. और कौन लाएगा? तो they are the generation. So the only thing is they have to know the right track, the right way to move forward. So these are the people who are the flag bearers of a bright future. True. But I also wanted to talk about the other side, ma'am. Like a lot of skeptics, non-believers say that manifestation is just wishful thinking. They don't believe in it, to be very honest. What would you like to tell these people that they misunderstand about manifestation, about law of attraction? See, manifestation, law of attraction is not like a good thing or the thing or the जो एक बार फैशन में आ जाती है. It's a lifestyle. Okay. It's a way of living. Yeah. Like you choose to live that way of living, you stay with it. Okay. ये नहीं होता कि आज कर लिया कल छोड़ दिया, परसों करा फिर छोड़ दिया. ये कर रहे हो तो you are just checking the waters. तो मैं हमेशा कहती हूँ, आप चाहे 1 साल लो, 2 साल लो, आराम से पहले उसको परखो. उसके बारे में जितना वाद विवाद करना है करो. आपको अगर उसके बारे में कोई प्रूफ्स चाहिए, टेस्टिमनीज चाहिए, जो चाहिए ढूंढ लो. पर एक बार किसी चीज को सरेंडर करते हो ना, the realm of magic opens only when you surrender. बिकॉज विदाउट सरेंडरिंग भगवान नहीं करेंगे तुम्हारा काम. जिस भी भगवान को आप बोलो मैं नास्तिक हूँ, तो नास्तिक को तो किसी को तो मानते होगे ना. अभी चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानो, मैनिफेस्टेशन को नहीं, आप राम जी को मानते हो, आप माता रानी को मानते हो, आप गुरु जी को मानते हो, किसी को तो मानते हो. जिसको आप मानते हो उसको सरेंडर तो करोगे. अगर आज जैसे गुरु जी फॉर एग्जाम्पल, जब तक आप उनको नहीं मानते तो नहीं मानो. कई लोग नहीं मानते, तो आप वही तो कह रहे हो ना, मैं नहीं मानता, तो मत मानो. पर अगर आपको लगता है कि उनमें कुछ ऐसा है जो आप उनसे सीख सकते हो, उनको फॉलो कर सकते हो, उनके रूल्स या जो भी वो सिखा रहे हैं, आप उसको लॉजिकली यस कर रहे हो, तो ठीक है. आप मान रहे हो तो स्टार्टिंग थिंग इज पहले ट्राई करो. आई ऑलवेज ट्राई करो, पहले थोड़ा टाइम ट्राई कर लो इसको. ट्राई जैसे मैंने सिखिज्म को पहले ट्राई किया है. मैंने ट्राई किया थोड़ा टाइम. एक बार आपने ट्राई किया, आपको लगता है कि आपके माइंडसेट को रेजोनेट कर रहा है, आपके सिस्टम को अग्री कर रहा है, और आप इसमें और डीपर जाना चाहते हो, देन द ओनली वे टू गो डीप इज सरेंडरिंग. Wow, that was so much knowledge. Yeah, and too much. very heavy learnings, but Yeah. thank you so much for that. And that was the general discussion segment with the ma'am. And now we'll catch you guys in the next segment, which is the hot seat. Stay tuned. Welcome back. We are now in the hot seat segment, where I'm going to be asking ma'am a few quick rapid fire like questions. And ma'am, you have to be quick and quirky with your answers. So let's see how this goes. Let's start. Ma'am, what is a book that changed your life? The Magic. The reason why I asked this question was specifically because I wanted to talk about this book a little. Okay. This is the book written by Rhonda Byrne, who has also written The Secret. And this is a very powerful book, is what I've gotten to know from people that I've spoken to about this. What is, if you could summarize this book in a line or two, what does this book
say, and why is it so powerful and your favorite book? Because for me it's not a book, it's a way of living life. Okay. And अगर आप Gen Z की बात करते हो, जो कि बहुत माइंडफुल लोग हैं एंड बहुत आई वुड से दे हैव अ लॉजिकल रीजनिंग. Yeah. आई वुड से कुछ भी चीज़ का अगर आप आंसर ढूंढ रहे हो, इवन अपनी लाइफ के लिए भी कोई आंसर ढूंढ रहे हो, यू मस्ट वॉच अ मूवी कॉल्ड द सीक्रेट. हाँ जी. तो सीक्रेट मूवी हिंदी इंग्लिश दोनों में है. 90 मिनट्स की मूवी है, आराम से अकेले में बैठ के विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस जस्ट वॉच इट. Okay. एंड अगर आपको लगता है कि इट्स मेकिंग सेंस टू यू, लॉजिकल माइंड को ओके लग रहा है, देन यू कैन स्टार्ट विद द सीक्रेट बुक. उसके बाद What is different in the book and the movie? मूवी इज 90 मिनट्स, Okay. बुक इज लॉन्गर. Okay. सेम चीज़ ही है उसमें, बट आप रूल समझ पाओगे कि आपकी लैंग्वेज, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड. Yeah. तो आपके वर्ड्स में आपको कैसी बातें बोलनी चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए आपको. जैसे आप सपोज बोल रहे हो कि अरे जल्दी चलाओ गाड़ी, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे, जल्दी चलाओ लेट हो जाएंगे, late ही तो होंगे. आप लेट ही होगे. क्यों? और अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आपको बोलना चाहिए जल्दी चलाओ गाड़ी, ताकि हम टाइम पे पहुंचे, ताकि हम टाइम पे पहुंचे. बात मीनिंग सेम है दोनों का. Yeah. पर आप जो बोल रहे हो वो आपकी जिंदगी, आपके वर्ल्ड का निर्माण कर रहा है. योर वर्ड्स आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड. Wow. तो सीक्रेट बुक इज वेरी गुड इन अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द रूल्स. बट जो जिस बुक ने मेरी लाइफ को कहते हैं ना बिल्कुल 360 डिग्री टर्न अराउंड कर दिया, दैट्स द मैजिक बुक. जादू. वो जादू क्या है? ग्रैटिट्यूड, आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद, थैंकफुलनेस. तो उस बुक में 30 डेज की पूरी असाइनमेंट होती है. मतलब आप बुक पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे और फिर असाइनमेंट पूरे दिन आपको ने अपनी लाइफ में यूज़ करना है. Okay. यूज़ मतलब जैसे आज का फॉर एग्जांपल असाइनमेंट है, मनी चैप्टर है. तो आज आपने पूरे दिन जो भी मनी से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपने पास्ट में कभी भी यूज़ करी हैं, उनके लिए थैंकफुल फील करना है. Okay. या आज का चैप्टर है द मैजिक इंग्रेडिएंट. तो आज आप जो भी खाओगे या पियोगे, पानी के लिए, रोटी के लिए, आपको थैंकफुल फील करना है या लिखना है, बोलना है एज पर द असाइनमेंट. ये 30 डेज का जो अगर आप बिना किसी बीच में गैप के पूरा कंप्लीट करते हो, आई गारंटी यू, मतलब गारंटी मतलब मैं नहीं गारंटी दे रही, मैं कह रही यूनिवर्स विल गारंटी यू कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा. बिकॉज योर एनर्जी शिफ्ट्स and you start attracting good things in your life, wanted things in your life. तो अगर आपका कोई ड्रीम है, कोई डिज़ायर है, कोई गोल है, कुछ विजन है, कहीं आप पहुंचना चाह रहे हो, कुछ प्राप्त करना चाह रहे हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, whatever your चाहत is, you must thoroughly practice. और अकेले भी कर सकते हो, नहीं तो ग्रुप में करने में आपकी एक ना स्ट्रक्चर बन जाता है. Okay. रेगुलरिटी बनी रहती है. तो हम लोग सब ग्रुप में करते हैं, जूम पे मिलते हैं. Okay. और हमारी हर महीने ये प्रैक्टिस होती ही होती है. तो आप रिकॉर्डेड यूट्यूब में भी कर सकते हो, पर खुद से करने पे ना, जैसे आप आज बिजी हो गए या कहीं जाना पड़ गया, तो फिर आपको लगेगा कि अरे चलो कल कर लूँगा, तो वो फिर वो रेगुलरिटी ड्रॉप हो जाती है. फिर वो एनर्जी इतनी, जो हम एनर्जी, जैसे आपको पता है कई बार मंदिर या गुरुद्वारे जो मानते होते हैं वो लोग चिलिया करते हैं 40 दिन का. जिसको चिलिया बोलते हैं. 40 दिन का ना, इवन आप रोजे भी देखोगे तो 40 दिन का एक स्ट्रक्चर होता है. तो आपके स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए 1.25 महीना या 40 दिन तक आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना जरूरी होता है. Does it apply to habits also? Everything. If you want to transform anything inside you, you have to follow certain practice, minimum 30 days Okay. to 40 days. Wow. तभी वो चेंज होना शुरू होता है. अगर आपकी एनर्जी को भी आप चेंज करना चाह रहे हो अंदर से, तो आप तभी तो मैजिक बुक का स्ट्रक्चर जो है इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि वो आपको 30 डेज का स्ट्रक्चर बना बनाया मिल रहा है. तो आपने उसको, अगर आप बीच में एक दिन भी गैप डालोगे ना, जैसे आप गुरुद्वारे का चिलिया रखते हो, तो आपने कहा मैं रोज़ दर्शन करने आऊँगा तो मेरी मन्नत पूरी हो जाए, मुराद पूरी हो जाए. अब बीच में एक दिन अगर आप नहीं गए तो आपको चलिए रीस्टार्ट करना होता है. फिर दोबारा से, अगर बीच में 25 दिन भी हो गए डजंट मैटर, अब वो ख़त्म. तो ये हम नहीं, ये पिछले लोग भी जानते थे इस हैबिट को, क्योंकि आपकी एनर्जी शिफ्ट होना ज़रूरी है किसी भी गुडनेस को अट्रैक्ट करने के लिए. My next question is, ma'am, do you have any particular spiritual quote that is like your favorite? हाँ, कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर. Wow. I love this quote from Bhagavad Gita. And why? Because people must misunderstood it so badly. मतलब वो समझते हैं कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर. मतलब फल तो हमारे हाथ में ही नहीं है ना, वो ये समझते हैं. When I read it as an ontologist in my profession, what beautiful riddles in the Bhagavad Gita, Guru Granth, ये सब ना riddles हैं. riddles में तो पहेलियाँ होती हैं, ताकि
जिस इंसान में रोशनी होना, उसकी रोशनी में अलग तरह से प्रकाशित होती है या चमकती हैं ये मीनिंग इनके। तो व्हेन आई रेड इट आई फेल्ट लाइक, वो कह रहा है तू कर्म कर, कर्म तो तुझे ही करना है, फल की चिंता मत कर। तो फल मतलब इनको पता है कि इसको कोई फल एक्सपेक्टेड है, तो नंबर एक तो तुझे पता होना चाहिए तुझे चाहिए क्या है। अब वो कह रहे हैं तुझे कंफर्म्ड है ना, फल मीन्स द डेस्टिनेशन वेयर यू वांट टू, रिवॉर्ड, हाँ, जो जहाँ तक आपको पहुँचना है, जो आपको चाहिए, तो वो आपको कंफर्म्ड होना चाहिए, वो आपको कंफर्म है। हाँ, अब वो कह रहे हैं चिंता मत कर। चिंता मीन्स नेगेटिव एनर्जी, वरी करना, चिंता करना। जैसे इन माई लैंग्वेज आई से फियर एंड वरी आर द अनसेड प्रेयर फॉर योर बैड लक। अगर आप अपनी जिंदगी में बैड लक मंगाना है ना, तो चिंता और डर, ये दो आप रेगुलर करो, सब कुछ नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में। जैसे कि ग्रैटिट्यूड, एंड जैसे ग्रैटिट्यूड इज अ प्रेयर फॉर गुड एनर्जी, तो ये चिंता और डर नेगेटिव एनर्जी के अनसेड प्रेयर्स होती हैं। तो अगर आपने चिंता करी तो आप कभी भी अपने फल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो कृष्णा वेरी ब्यूटीफुली सेइंग, तो अगर आप चिंता नहीं करनी, वो कह रहे हैं तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो अगर आप चिंता नहीं करोगे तो उसका उल्टा क्या होगा, आप क्या करोगे उस समय? खुश रहेंगे। हाँ, तो वो ये कह रहे हैं आपको कि तू गुड एनर्जी में रह, कि तू कर्म कर और साथ साथ में गुड एनर्जी में रह। जैसे कि फॉर एग्जांपल गुड एनर्जी बनाने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है थैंकफुलनेस। आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे तो गुड एनर्जी में रहोगे नॉर्मली। तो वो कह रहे हैं तू एक्शन में रह और साथ साथ में गुड एनर्जी में रह, तो अपने फल तक पहुंच जाएगा। तो दिस फ्रेज इज समथिंग जो मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा माना है और प्रैक्टिस भी करी है। और कर्म मैं करती हूँ, मतलब अगर मैं कुछ भी ना कर रही हूँ, मुझे लगता है हर इंसान को अपने दिनचर्या में से 8 घंटे 8 आवर्स का ना एक साइंटिफिक रीज़न है, आपको 8 घंटे डेली अपने आप को किसी ना किसी एक्शन में बना के रखना चाहिए। जैसे कि हमारे जब हम बात करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जो हमारे जिसको ट्रिनिटी बोलते हैं, ब्रह्मा मीन्स क्रिएटर, विष्णु मीन्स सस्टेनर, महेश मीन्स कंप्लीटर। कंप्लीटर मतलब जो आपको चीज़ मिलनी थी मिल गई, अब ख़त्म हो गई वो बात ना, ख़त्म। तो अगर सही से साइंस समझो तो बी डू हैव, बी मतलब बी मीन्स जो बना रहा है, डू मीन्स जो कर्मों की दुनिया है, हैव मीन्स जो मिलना था मिल गया, प्राप्त कर लिया, नाउ इट्स कंप्लीट। तो बी डू हैव की दुनिया। आई ऑलवेज से लोगों को क्लियर होना चाहिए कि हैव में तुम्हें क्या चाहिए। नाउ बी मीन्स तुम अंदर से कौन हो, जैसे आपको ने कहा खुश रहना है ना, तो अंदर से आप खुश हो या ग्रेटफुल हो, और डू के अंदर अपने कर्मों की दुनिया में एक्शन में बने रहो। तो 8 आवर्स 24 घंटे में से 8 घंटे आपको, जैसे आपको एक्शन में बने रहना बहुत ज़रूरी है। दैट विल टेक द गाड़ी टूवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन। तो गाड़ी में पेट्रोल कौन है, आपकी फीलिंग, आपका फ्यूल जो है वो आपकी फीलिंग्स हैं, फीलिंग इज़ द फ्यूल, आई से दैट। तो आपकी गुड फीलिंग्स फ्यूल है, गाड़ी एक्शन जो आप डूइंग कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वह अपने आप आपको आपके गंतव्य तक, आपके फल तक ले जाएगी। तो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, कर्म करो, खुश रहो, ग्रेटफुल रहो। Listen to it, guys. My next question is, what is that one daily ritual that you never skip? Nitnem. Nowadays, after being an Amritdhari, so we wake up in the Amrit Vela, that is 3 hours before the sunrise. Okay. And we do our Panch Bani ka Paath and Ardas. Then in the evening after sunset, I do Rehras Sahib Ji, evening Paath, and then Ardas. And then before sleeping, I do my Sohila Sahib. So, this is something which is a daily routine. And ये पार्ट और कुछ नहीं है, ये ग्रैटिट्यूड ही है सारे के सारे इन डिफरेंट वेज। तो ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं इन अ डिफरेंट लैंग्वेज और इन अ डिफरेंट वे, बट दिस इज़ माई डेली रूटीन। ये तो मैं करती हूँ बाकी सब चीज़ें चॉइस है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर आउटफिट? अभी वाला? हाँ जी। माई आउटफिट इज माई मूड। Okay. Whatever mood I'm in, I wear that. So it's a positive mood. It can be positive. It can be party mood. It can be funny mood. Okay. And mostly, I love from the very beginning. I used to love white and off-whites. That's something I like the color. So whenever I wear whites, I feel more connected to my own self. That's it. Okay. And for me, it's like just. I like it. Okay. कई लोगों को लगता है, एक बार कोई बोला मुझको ऐसे ना ऑनलाइन पे था, कहता उसने, मैंने बाद में अपने हस्बैंड को मिलवाया किसी सेशन में, कहता ओह मैं तो समझी आप साध्वी हो,
व्हाट डज दैट मीन? साध्वी में साधु टाइप्स। Okay. वो मेरे साथ किसी कोर्स में थी, तो मैंने बताया नहीं होगा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो उसको लगा, क्योंकि आई यूज्ड टू वेयर वाइट, मेरे को लगा ये क्या है, वाइट पहनने वाले लोग साधु साध्वी क्यों बन जाते हैं? वाइट इज जस्ट अ कलर यू लव टू वियर, एंड लोगों को लगता है कि आप बड़े स्पिरिचुअल हो गए हो। नहीं, आई लाइक इट, आई वेयर रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, एवरीथिंग। ओनली थिंग इज आई फील समटाइम्स जैसे आई वाज इन गोवा रिसेंटली विद माय फैमिली, so at that time white is not my cup of tea, because white looks very boring at that time. तो मतलब फोटो भी अच्छी नहीं आती। तो that way, so I think if I am learning or if I'm with my guru, I don't want to distract myself with colors on prints or any distraction. So I think white is very subtle and mixing kind of color. So what I wear is my mood. I always say that. Good answer, good answer. Ma'am, if you weren't a spiritual coach or a cosmetologist, what would you be doing in your life right now? Making people look and feel beautiful, internally and Yeah. externally. Wow, great answer. What is your most prestigious award? All India Excellence Award in Makeups. That Okay. was one. And then from the Chief Minister of Delhi, I got the Nari Shakti Award for NSDC. So I won't say prestigious, but these awards really made me a better human being. Okay. And like मेरे पापा कहते, मतलब पापा तो नहीं, पर ऐसे कभी घर में बात हुई जैसे पद्म श्री या पद्म विभूषण, यू नो, मतलब सोच पापा को अगर अच्छा लग रहा है तो चलो मैं ले लूंगी। Okay. मगर कुछ चीज़ें अपने मम्मी पापा के लिए भी करनी चाहिए। हाँ जी, तो बिल्कुल। मतलब आई जस्ट फील लाइक कि कई बार मैं इमेजिन करती हूँ कि मैंने कुछ तो ऐसा अच्छा किया ही होगा ना, कि मेरे को प्रेसिडेंट अवार्ड दे रहे हैं अपने प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, विजन बोर्ड है, और पापा मैं कुछ सिर्फ ये दिख रहे पीछे पापा बैठे हैं चेयर पे, एंड पापा इज लाइक वेरी हैप्पी। तो अच्छा है ना, these things actually keep you going on in your life. मतलब किसी चीज़ के, मैंने जिंदगी में देखा कि जब मेरी लाइफ में बहुत था, अमिताभ बच्चन से मिलेंगे एक दिन, शाहरुख खान से मिलेंगे एक दिन, और एक दिन हम मिल लिए, बैठ लिए, बातें कर लिए, फिर उसके बाद हुआ कि बस दैट्स इट, ये ऐसे था। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने लाइफ में सभी चीज़ एक्सपीरियंस करी हुई है, कि हम जिस चीज़ को बहुत बड़ा मानते हैं, बहुत बिग चीज़ मानते हैं, और एक दिन वो चीज़ मिल जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद क्या। बट ये जो बाद वाला है, ये आगे की जो चीज़ है, जो आपकी इच्छाएं होती हैं ना, ये इच्छा ही आपको शक्ति देती है, जिसको हम कहते हैं इच्छा शक्ति। अगर इच्छा नहीं होगी तो आप तो उठो ही ना, सुबह बेड से ही ना उतरो। तो इच्छा शक्ति इज द मेजर फोर्स, पावर ऑफ योर लाइफ। पर इच्छाओं को सही डायरेक्शन में करना, ये विद टाइम आ जाएगा। मतलब आई ऑलवेज से, जैसे जो हमारे पास लोग आते हैं, हम ड्रीम्स पे काम करते हैं, आई ऑलवेज से इच्छा इज डिफरेंट देन लालच। I can empower you to achieve your इच्छा, but I will never empower you to achieve your greed. Need is different than greed. तो हमें ये भी डिफरेंशिएट करना सिखाना होता है अपने प्रैक्टिशनर्स को, कि नीड और ग्रीड में फ़र्क क्या है। क्योंकि नीड आपको सेटिस्फेक्शन जरूर देगी, वो हमेशा चेंज होती है, पर ग्रीड तो, पैसे की ग्रीड आ गई ना, तो आप पैसे के पीछे पूरी जिंदगी पड़े रह जाओगे, फिर आगे कैसे बढ़ोगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स गाइड्स यू टू फुलफिल योर नीड्स। Okay. And lastly, ma'am, what's one small daily practice that can completely shift someone's mindset or energy, like you said? आप कुछ भी नहीं करो, ये दो चीज़ें बस कर लो। सुबह सुबह उठते ही, जैसे आप उठो, एक होता है प्रॉपर उठ गए, एक होता है जब आप थोड़ा नींद में होते हो हल्का हल्का, उसी टाइम बेड के ऊपर लेटे लेटे, द मोमेंट यू ओपन अप योर, अभी आईज भी नहीं खुली, चलो आप अंधेरे में सोए हुए हो, फाइंड आउट 10 थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। जैसे कि आपके पास इस समय आपके कमरे में पंखा है, सो आई एम थैंक यू फैन फॉर गिविंग मी एयर, थैंक यू मेरे पास बेड है, आई एम ग्रेटफुल टू बेड फॉर गिविंग मी गुड स्लीप, आई हैव पिलो, आई हैव शीट, यू नो, आई हैव अ रूम, आई हैव AC, जो भी आपको लगता है, आई हैव अ नाइट सूट टू वियर, जो भी आपको लगता है। आप उठ रहे हो, चलो उठते उठते ब्रश करने लग रहे हो, तो ब्रश, आई हैव अ ब्रश टू क्लीन माई टीथ, आई हैव टीथ, आई हैव आईज, आई हैव हैंड्स, आई हैव फिंगर्स, एनी 10 थिंग्स। मॉर्निंग में सुबह उठते जस्ट कोई भी 10-12 चीज़ों के ग्रैटिट्यूड दिल से फील कर लो। सिमिलरली जब रात को सोने लग रहे हो, बिल्कुल लाइटें बंद कर दी, अब सो रहे हो, आप सोते सोते बस दिन भर में सोचो कि क्या अच्छी चीज़ हुई आज। बहुत सारी बुरी भी हुई हो सकती हैं, बट फाइंड आउट वन थिंग यू आर ग्रेटफुल फॉर, और मैनी थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट यू फाइंड गुड, और उसको सोचते सोचते सो जाओ। लास्ट थिंग इन द नाइट टू फील ग्रेटफुल फॉर द गुडनेस ऑफ योर लाइफ, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। बस ये दो और छोर पकड़ लो आप।
मेरे आपकी ज़िंदगी की 50% चीज़ें अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगी. Okay. बिकॉज दिस इज़ अ ब्यूटिफुल साइंस वी टीच इन NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक पैटर्न्स में ना सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को सिखाते हैं. जब आप सो रहे होते हो उस समय आपका सबकॉन्शियस काम करता है. जब आप उठ गए तो कॉन्शियस काम कर रहा है. पर सारी पावर, मोर देन 94% ऑफ योर पावर लाइज विद सबकॉन्शियस. Okay. द पावर ऑफ सबकॉन्शियस इज दैट पावरफुल. Okay. तो उसको कैसे आपने हार्नेस करना है, कैसे उसको गुड एनर्जी देनी है, कैसे वो सारी रात आपके लिए जो बना रहा है थॉट पैटर्न्स वो पॉजिटिव हो जाए. तो ये सोने से पहले और उठते ही एकदम से. तो दिस इज वन टिप आई गिव टू एवरी नॉन प्रैक्टिशनर. That was a free tip for you guys. But yeah, that was the hot seat segment with ma'am. Again, very informative, and I hope you guys are staying tuned, because we are now moving to the next segment, which is Finance 101, where we're going to be asking ma'am some tips, some tricks about how manifestation, law of attraction can relate to wealth. So stay tuned, guys. We'll catch you in the next one. Welcome back. We are now in the Finance 101 segment. So without further ado, let's get into all the interesting questions. Ma'am, I wanted to ask, can law of attraction, can manifestation actually attract financial abundance? A lot of. In abundance, a lot of. Like इतना कि जितना आप सोच भी नहीं सकते हो. How does it happen? रूल्स होते हैं. हाँ जी. मतलब हाउ का क्या मतलब, अगर आप गरीबी भी अट्रैक्ट करो तो आप ही कर रहे हो. Okay. अगर फेलियर भी अट्रैक्ट करो तो आप ही कर रहे हो. और अगर आप फेलियर अट्रैक्ट कर सकते हो, सक्सेस भी अट्रैक्ट कर सकते हो. अगर आप स्केर्सिटी अट्रैक्ट कर सकते हो तो आप अबंडेंस भी अट्रैक्ट कर सकते हो. पैसों की दुनिया में. बट बिकॉज अगर आप मुझसे बात करते हो तो लाइक रिश्तों में, सेहत में, करियर में. पर जो मेरा फेवरेट ट्रेनिंग पॉइंट है, जो मतलब सब लोग जानते हैं कि आश्विन मैम अगर कोई मुझे कहे ना तब आई एम वेरी वेरी गुड एट, तो वो क्या है? मनी. That was my next question. Like, how do your teachings, help people fix their relationship with finance? हाँ, you see, relationship में it begins with self. When I teach, then self के साथ, body के साथ, फिर आपके जो human things हैं आपके around, या relationships है around, and then your relationship with finance. But why with finance? Because finance is tangible. Okay. आप रिलेशनशिप में खुशी आई कि नहीं आई मेरे पास मापने का कोई जरिया नहीं है, क्योंकि वो भी मुझे सिखाना पड़ता है. बट फाइनेंस या मनी तो टेंजिबल है ना. अगर आपके पास इस समय 1,000 रुपए हैं और आप मैनिफेस्ट करते हो 1 लाख रुपए, तो आप 1,000 से 2,000 पे आए, 3,000 पे आए, या आप 1,000 से 500 पे चले गए, 200 पे चले गए, ये तो दिख रहा है ना. टेंजिबल दिख रहा है, मतलब मेजरेबल है, टेंजिबल है, इसको काउंट कर सकते हैं. तो मनी की दुनिया आप काउंट कर सकते हो. यानी कि आप प्रैक्टिस ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आपको दिख रहा है रिजल्ट के अंदर. तो अगर प्रैक्टिस ठीक नहीं है तो हम और ठीक कराएंगे. उसको और ठीक कराते, मतलब कुछ ना कुछ रूल गड़बड़ कर रहा है ना, तभी तो रिजल्ट नहीं आ रहे ना. और अगर ठीक आ रहा है तो और अच्छा करो, आगे बढ़ो. तो मनी की दुनिया में बिकॉज इट्स अ टैंजिबल आउटकम, आई लव दिस. बिकॉज ये सिर्फ आपके दिमाग या फीलिंग या इमोशंस पे बेस्ड नहीं है, ये एक्चुअल में दिख रहा है. Okay. So that's how. And what about emotions, ma'am? Like anger, regret, these are negative emotions, I'm assuming. Obviously they are. Yeah. But how do they affect your relationship with money, let's say? Be it money, be it any area of your life. A human life is consisting of so many prime areas. Obviously money is very very important. मैं कई बार लोग कहते हैं ऐसे, मतलब सुनने को मिलता है, जो बड़े ज्ञानी श्यानी बने होते हैं, अरे ये सब माया है, मिथ्या है, अरे पैसा तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे. और मैं कहती थी चुप हो जा बाबा. तुझे नहीं चाहिए, तू हमें दे दे. You know, because money is very important. Yeah. Money, I won't say money is everything, but money is much मतलब money सब कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है. हाँ जी. I always say that. अगर आपके पास enough money है तो आप लाइफ के लिए बहुत टाइम निकाल सकते हो. आप अपने पैशन के लिए टाइम निकाल सकते हो. आप वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो. पैसा ही नहीं है तो बड़ी बड़ी बातें क्या कर रहे हो. यू नो, समटाइम आई मीट अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल पीपल, और जो अपने भिक्षा मांग रहे हैं, यू नो, या किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है. ऐसे तुम दुनिया को तारने आए हो, पहले खुद को तो तार लो. You know, simple saying कि at least you should be enough for yourself. You know, you should not be someone कि आप किसी और पे डिपेंडेंट हो रहे हो. नंबर 1. तो मनी, I always say money is, I won't say money is everything. See, money is materialistic
पोजेशन, Yeah. बट ये आपकी काफ़ी सारी ज़रूरतों को टेक केयर कर लेता है. Okay. एंड योर माइंड बिकम्स, बिकॉज आपका माइंड तो सारी गेम खेल रहा है, पैसा ही नहीं है ना, तो वो आपका दिमाग आपको कभी शांति से बैठने ही नहीं देगा. Okay. और अगर आपको पैसा है और आपने, एक और चीज़ होती है, एक होता है पैसा जो आपको गिफ्ट मिला है, कहीं से मिला है, ये भी पैसा है, विच इज़ गुड. बट जब आप सेल्फ अर्न करते हो, खुद से बनाते हो, खुद से अट्रैक्ट करते हो, खुद से अर्निंग या प्रोसेस करते हो, ये अलग फीलिंग होती है, बिकॉज ये आपका सेल्फ अर्न मनी होता है. ये आपको बहुत मतलब एक अलग ही दुनिया में सेल्फ एस्टीम में ले जाएगा. True. एरोगेंस अलग चीज़ है, True. ईगो अलग चीज़ है, True. एंड सेल्फ एस्टीम अलग चीज़ है. Yeah. एंड आई ऑलवेज फील एवरी ह्यूमन इज बोर्न ऑन दिस प्लानट टू अर्न सेल्फ एस्टीम. Okay. आप सेल्फ एस्टीम कमाने ही आए हो. आपके अंदर जो एक छोटी सी रोशनी थी जो आपके पैदा होने से पहले आई है, आप देखो ना, जितने जितने ये भगवान होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, आपने कभी इनके अराउंड वो मुखमंडल, आभा मंडल, एक रोशनी का सर्कल नहीं होता, वो रोशनी का सर्कल क्या है? आपकी वो छोटी सी रोशनी बढ़ती बढ़ती इतनी ज़्यादा रोशन हो गई है कि अब वो दिखना शुरू हो गई है. मतलब ऑरा सर्कल जिसको हम बोलते हैं, जिसको लाइट का सर्कल बोलते हैं. तो ये उन्होंने कैसे बनाया, आप भी बना सकते हो. तो ये क्या है? ये सेल्फ की एस्टीम है, ये सेल्फ की पावर है. तो मनी, अगर सेल्फ को मनी कमाना ही नहीं आ रहा ना, तो भूल जाओ, बाकी सारी बातें तो भूल ही जाओ बिल्कुल ही. तो मनी कमाना, एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग पागल हो जाना या किसी चीज़ के लिए ग्रीडी हो जाना. आई एम सेइंग जितना आपको चाहिए, जो आपको लगता है आपको चाहिए, वो आपको कमाना आना चाहिए. एंड हम जब मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाते हैं मनी के ऊपर, प्रॉपर स्टेप्स होते हैं. सिट्स, आई ऑलवेज, जब आप मुझसे पूछोगे, आप गाइडेंस लोगे, मेरा पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट डू यू वांट. Okay. और जब मैं लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ जो पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल कर रहे होंगे, जो भी होता है, मैं पूछती हूँ कितना पैसा चाहिए. है जितना मिल जाए उतना ही अच्छा है, भगवान की कृपा होती है, मैं क्या बोलूँगी, जितना मिल जाए अच्छा. इतने एम्बिगुअस आंसर्स देते हैं ना, और मैं कहती हूँ फेल. यू आर फेल्ड. क्योंकि यूनिवर्स इज एज प्रिसाइज एज कि जैसे आप रेस्टोरेंट पर जाते हो, खाना खाने जा रहे हो, अब वेटर आया तो पूछेगा ना कि भैया क्या खाओगे, जो खिला दो सभी अच्छा होता है, जितना मिल जाए इतना अच्छा है, भूख बहुत लगी है, सब ले आओ. तो ये कैसा ऑर्डर हुआ? पर यू विल से ना कि एक चपाती ले आओ, एक दाल मखनी ले आओ, एक साथ में लच्छा परांठा ले आओ. But you precisely place the order. Similarly, money की दुनिया में I always train people to precisely and clearly place the order. कितना चाहिए? वो कहेंगे 1 लाख चाहिए हर महीने का, या 1 करोड़ चाहिए, whatever amount is. First thing is clear. Now second question is क्यों चाहिए? अब यूनिवर्स वेला तो बैठा नहीं कि तुमने कुछ भी बोला वो ऑर्डर प्लेस कर देगा. भाई वो पूछेगा ना क्यों चाहिए. मतलब क्यों का मतलब कि अगर आपने 1 लाख बोला तो बताओ ना कि मुझे शॉपिंग करनी है, या मुझे आईफोन खरीदना है, या मुझे बच्चों की फीस देनी है, या मेरे को अपने दवाई का खर्चा करना है, या अपना घर बनाना है, जो भी. यू शुड गिव अ रीजनेबली गुड आंसर कि क्यों चाहिए. जैसे आप पापा से पैसे मांगते हो तो वो बोलेंगे नहीं क्यों चाहिए. यूनिवर्स भी पूछता है क्यों चाहिए. और अगर आप ठीक आंसर दे दोगे, 19 पीस चलेगा तो चलेगा. 19 पीस मतलब आपने 1 लाख का आस्क किया है, और जो आपकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट है वो 99,000 की है, या 1,01,000 की है, इसको 19 पीस, इतना तो यूनिवर्स अलाउ कर देगा. पर आपने आस्क किया 1 लाख का, और जो आपने लिस्ट बनाई है वो 90,000 की, थप्पड़ पड़ेगा जोर की. That was my next question. बड़ी जोर की पड़ता है थप्पड़ यूनिवर्स. चल भैया से, यू नो, यूनिवर्स ट्रीट यू लाइक दैट कि तुझे ही नहीं पता तुझे 1 लाख क्यों चाहिए, तो क्यों दूं तुझको. या फादर भी तो जब आपको कुछ देते हैं तो अगर आप जेन्युइनली मांग रहे हो दे देंगे पैसे, पर अगर आप एम ही मांग रहे हो, बेल्लागिरी कर रहे हो, तो नहीं मिलेगा. I was gonna ask you that is there something as manifesting too much or asking too much from the universe? अगर आपकी ज़रूरत है, जैसे कि आपकी ज़रूरत, फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय क्लाइंट इज देयर, ही इज हैविंग हिज बिजनेस इन जामनगर. इसकी 3-4 जगहों पे मतलब दिल्ली में है, एंड ही हैज ए प्राइवेट, अब उसके पास प्राइवेट चार्टर है अपना, जेट है. क्योंकि उसको लगता था कि मुझे हर रोज अलग अलग यूनिट्स पे जाना होता है. ही हैज अ कंस्ट्रक्शन यूनिट इन सो मेनी सिटीज ऑफ इंडिया, और मेरे को हर बार एयरपोर्ट जाना पड़ता है, लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, फिर फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, ये जो भी उसका था, तो टाइम बड़ा वेस्ट होता है. तो मैंने कहा व्हाई डोंट यू मैनिफेस्ट अ प्राइवेट चार्टर, बिकॉज इट इज योर रिक्वायरमेंट. अब अगर आप मुझसे बात करोगे इस समय, तो मुझे पता नहीं आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, बट अगर वो आपकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट है तो नो विश इज स्मॉल और बिग. Wow. No amount is small or big. It should be a genuine requirement. I'm loving the way you're explaining it so simply, and people will be able to understand, because I am understanding. It's very simple. Yeah, very true, simple. True. Also, ma'am, how should one deal with setbacks? Let's say मैंने manifest किया, वो मेरे requirement में भी था, it wasn't too much,
पर मेरे को नहीं मिला, तो मेरे को तो बुरा फील होगा, मैं क्या फील करूँ फिर? पर आप देखो, बुरा फील करके तो आप अपनी रिक्वायरमेंट से या अपने विश से और दूर जा रहे हो ना, बिकॉज से नेगेटिव एनर्जी। तो कई बार यूनिवर्स, देखो यूनिवर्स में ना दो चीज़ें होती हैं जब हम मैनिफेस्टेशन सीखते हैं, तो मैं पहले ही सिखाती हूँ। देखो मैं नहीं बोल रही, पहले से सुना होगा कि किस्मत से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा, ना मिलेगा, और वक्त से पहले ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा। अब इसको सुनकर लोग कहते हैं अच्छा किस्मत की तो बात है, क्या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, या वक्त ही नहीं था मेरा। अच्छा, मैं कहती हूँ अकल के अंधे सुन, वो रिडल क्या बोल रही है, वो रिडल है। लोग इसको ना बड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वो कहता है कि किस्मत से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? किस्मत। अच्छा, किस्मत डिसाइड कर रही है। किस्मत क्या डिसाइड कर रही है? कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा। अच्छा। है ना, उसने बोला किस्मत से ज्यादा ना कभी मिला है ना मिलेगा, तो कम या ज्यादा कौन डिसाइड कर रहा है? किस्मत। ओके। दूसरी बात उसने क्या बोली? वक्त से पहले ना कभी मिला है ना मिलेगा। तो तुझे पहले मिलेगा या बाद में मिलेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? वक्त। तो दो अलग अलग पैरेलल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, किस्मत एंड वक्त। ओके। अब किस्मत कैसे बनानी है हम आपको सिखाते हैं। किस्मत मतलब कि आप किस मत में हो। मत किसे, मैंने आपको शुरू में बताया था, गुरुमत मैंने वर्ड यूज किया आपके साथ। मत मीन्स क्या? आपकी माइंड। तो आप किस मत में हो, मतलब कि आप मत, जो आपका मत मतलब पॉजिटिव मत भी हो सकती है, नेगेटिव मत भी हो सकती है। मत मीन्स माइंड। ठीक है। अगर आप गुड थॉट्स में हो, गुड प्रैक्टिसेस में हो, गुड एनर्जीज में हो, तो आप अपनी किस्मत अच्छी बना रहे हो। आप अपनी किस्मत बिगाड़ भी सकते हो। तो किस्मत ये ऐसे बनता है। जब हम कहते हैं वक्त से पहले ना मिलेगा ना मिलेगा, तो मैंने आपको बताया था वक्त बहुत पावरफुल होता है। हम वक्त की अलग प्रैक्टिसेस कराते हैं जिसमें हम आपको इंटेग्रिटी के रूल्स सिखाते हैं, या आपको वक्त के साथ कैसे अलाइन करना है वो सिखाते हैं। जैसे कि आज मैंने मुझे बुलाया 2:30 बजे फॉर एग्जाम्पल। मुझे 2:30 बजे पहुंचना था, बट रास्ते में कहीं कुछ ब्रेक डाउन हो गया था सड़क के ऊपर। तो आई न्यू आई विल नॉट बी रीचिंग बाय 2:30 बजे। मैं 10-15 मिनट लेट हो सकती हूँ। तो मैंने उससे 2:30 बजे से पहले आपको मैसेज कर दिया था कि आई विल बी सीइंग यू अराउंड 2:45 और सो। अब इसका क्या मतलब है कि आपने अगर किसी को टाइम दिया है तो आपको टाइम की इज्जत करनी है। अपने टाइम की भी, उसके टाइम की भी इज्जत करनी है। जब हम टाइम की इज्जत करते हैं ना, तो टाइम हमारी इज्जत करता है। ये कोई पंक्चुअलिटी की या डिसिप्लिन की बात नहीं कर रही मैं, आपको वक्त की दुनिया के नियम बता रही हूँ। तो ये एक नियम है, ऐसे कई नियम है जो हम वक्त की दुनिया के सिखाते हैं। जिस दिन आप जो आप बोल रहे हो वो आप कर रहे हो, और उस टाइम पे कर रहे हो जिस टाइम पे आपने बोला आप करोगे। दिस इज हाउ द लाइफ स्टार्ट मूविंग इन अ वेरी फास्ट स्पेस, वेरी फास्ट। आपने बोला मुझे कुछ चाहिए था पर मुझे मिला नहीं। दो फैक्टर हो सकते हैं, या तो आपने अपनी एनर्जीज पे काम नहीं किया, या आपने अपने टाइम पे काम नहीं किया। नाउ आप जितना मर्जी उसके बारे में रिपेंट करो, रिमोर्स करो, एक तो ये भी है। दूसरा वे, ओके लेट मी स्टार्ट अफ्रेश। लेट मी स्टार्ट अफ्रेश। मैं मानता हूँ कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैंने कुछ ना कुछ कहीं पे कोई प्रैक्टिस में मिसिंग किया है, बट लेट मी लर्न द फॉर्मूलाज राइटली एंड लेट मी स्टार्ट अफ्रेश। एंड आई ऑलवेज से एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग। इफ यू हैव दैट माइंड सेट ना कि ओके फाइन, मैं फेल हुआ हूँ, 10 बार फेल हुआ, 20 बार फेल हुआ, बट लेट मी ट्राई अगेन। So that is how you will reach there, provided you are very clear this is what you want. आज अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा ड्रीम जो है इस समय कि मैनिफेस्टेशन या पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को 100 करोड़ लोगों तक पहुँचाना। अभी हम लोग लाखों में ही हैं, खाली 1 करोड़ भी नहीं होंगे हम लोग, मतलब लाखों में ही जो भी हमारे ग्रुप में या काम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। 100 करोड़ इज समथिंग थॉट से भी बियॉन्ड। पर मुझे पता है मेरा सपना है। अगर मैं हर रोज सुबह उठूँ और बोलूँ कि अरे आज तुम 1000 में ही है, लाखों में ही है, मैं तो पहुंच ही नहीं पाई, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, तो आई एम कंप्लेनिंग अबाउट इट। मैं हर रोज पूछती हूँ कि चलो आज मैं अधिराज से मिली और उसको भी पता चला मैजिक बुक के बारे में, उसने भी प्रैक्टिस करने की सोची। आई एम वेरी ग्रेटफुल। So even a small thing in my life, if I'm grateful for that, only that's the way to reach your final destination. Okay. And every day is an opportunity. I always say that. So choice आपकी है कि अपने गिलास को आधा भरा देख के रिपेंड करना है, या नहीं आधा खाली देख के रिपेंड करना है, आधा भरा हुआ होता है ना, वो गिलास वाला एग्जांपल होता है, आधा गिलास पानी है, हाफ फुल और हाफ एम्प्टी वाला। तो चॉइस आपकी है। Fair. And ma'am, what would you say to non-believers or people who are skeptical about your preachings, your teachings, and but are still curious about knowing कि
क्या पता what ma'am says is actually applicable and true. तो मैं कहती हूँ एक महीना करके देख लो. अच्छा. मतलब कहते हैं ना, वो कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. ये किसी डिटर्जेंट की ऐड क्या है. तो मैं कहती हूँ पहले कर लो ट्राई. अगर रिजल्ट आ गया तो कंटिन्यू कर लेना. जैसे आप कभी मॉल में भी जाते हो, कोई कपड़े खरीदने जाते हो, एक तो होता है देख के ही डिस्कार्ड कर देना, एक होता है कि ट्राई करता हूँ क्या पता सूट कर जाए. तो भाई एटलीस्ट ट्राई इट ऑन. नहीं सूट करे तो छोड़ देना. तो मतलब पर एटलीस्ट एक पर्टिकुलर टाइम की कमिटमेंट जरूर देना. जैसे 1 मंथ की, तो 1 मंथ तक सरेंडर कर दो. उसके बाद चॉइस कर लेना. Okay. And lastly, ma'am, what is one spiritual practice that people struggling with finance can practice and maybe turn around that aspect of their life? Easiest वाला. Easiest वैसे तो 5-6 होती हैं. Easiest. वो मैंने जापानीज टेक्निक है, बहुत अच्छी. एरिगाटो इन, एरिगाटो आउट. ये नेट पे सर्च करो. एरिगाटो इन मतलब कि जब भी आप किसी से पैसे ले रहे हो, किसी भी वे में, क्लाइंट से ले रहे हो, किसी से छुट्टा पैसा वापस ले रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, आपके सिस्टम में पैसा अंदर आ रहा है, आपके पर्स में, लॉकर में, कहीं भी आ रहा है, उसी समय आपने उसको थैंक यू करना है. ओके. थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ. तो पैसे को अंदर लेते हो भी थैंक यू करना है. और आप किसी को पे कर रहे हो, किसी को सैलरी दे रहे हो, किसी सब्जी खरीदी उसको पैसे दे रहे हो, किसी को पेटीएम कर रहे हो, और ऑनलाइन कोई भी पेमेंट कर रहे हो, जब भी पैसा बाहर जा रहा है आपके स्ट्रक्चर सिस्टम में से, आपने कहना है थैंक यू. जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स रहे. तो आपने आरिगेटो इन, आरिगेटो आउट. बस आपने पैसे को अंदर और बाहर जाते हुए थैंक यू करना है. आप हफ्ता करके देखो, यू विल सी एनर्जी शिफ्टिंग इन द एरिया ऑफ मनी. Wow. Yeah, that was something for you guys. That's why I asked her. But that was the Finance 101 segment. I think very, very interesting segment. But stay tuned because my favorite segment is coming up, which is the Curiosity Gap. We've spoken so much about being curious. So yeah, we'll catch you in the next segment now. See ya. Welcome back. We are now in the final segment, which is the Curiosity Gap, where I'm going to be bringing in some topics that will make you maybe be more curious about them, and maybe our discussions and conversations can generate some interest in these topics for you as well. Ma'am, the first topic that I wanted to talk about is the missing ingredient in manifestation. Like we've also spoken about earlier, I personally believe that a lot of people utilize manifestation very selfishly. Like they would just think that ye ho jaye mere saath and then expect it to happen, but they don't take any action, right? तो what would you tell these people जो सोचते हैं कुछ हो जाए बट कुछ करते नहीं हो उसके बारे में? ये यहाँ नहीं करते, ये मंदिर में भी ऐसे ही करते हैं. ये जाके भगवान मुझे पास करा दे, जो 40 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा. That is the funniest thing I've ever kept hearing over a long period. अच्छा, भगवान ने तो तुम्हें सब कुछ दिया है और कहते भगवान मेरी ये मुराद पूरी कर दो, मैं तुम्हारे यहाँ पे आके चद्दर चढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे छतर चढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे को प्रसाद चढ़ाऊंगा. What a stupid bargaining. अच्छा, अगर पूरा नहीं करेंगे तो नहीं चढ़ाओगे. That's funnier. तो मतलब ये कुछ चीजें मतलब फनी है. तो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में भी सेम, ये लोग यहाँ आ गए अंदर. तो मतलब अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं करूंगा, नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूंगा. तो अब सरेंडर कहाँ है? कहते हैं ना, सबसे पहला जो सबसे स्टेपिंग स्टोन होता है, सीढ़ी होती है, वो उसको कहते हैं बिलीफ. विश्वास तो करो यार. विश्वास ही नहीं कर रहे हो इसके ऊपर, ना भगवान पे कर रहे थे, अब ना मैनिफेस्टेशन पे कर रहे हो. विश्वास करो, चाहे किसी टाइम पीरियड के लिए करो, पर करो. अच्छा, भगवानों के साथ तो और भी गड़बड़ है. पूछो क्या? एक मंदिर में जाते हैं कई लोग, मैं करती थी ऐसे ना, जैसे 12वीं के पेपर है, पहले जाकर हनुमान जी पास करा दो, फिर साथ में माता रानी पास करा दो, फिर राम जी पास करा दो, कृष्ण जी पास करा दो. मतलब हनुमान जी भी पूरा बिलीफ नहीं है क्या कि वो अकेले कर लेंगे तुझे पास? मतलब कि फिर जाके शिवलिंग को भी जाके पानी चढ़ा रहे, पास करा दो. बस शिवलिंग पे भरोसा है तो माता रानी को क्यों टाइम पास कर रही है? ये तो मुझे और भी कंफ्यूजिंग लगता था कि ये क्या है. बाद में जब थोड़ी अक्ल आई तो कि मतलब अगर मैं इनको, जैसे होता नहीं, एक दोस्त को बोला, दोस्त तू मेरा दोस्त है, तू मेरा काम कर दे, फिर थोड़ी बार पता नहीं करेगा कि नहीं, दूसरे को बोल देता हूँ. सेम भगवानों के साथ कर रहे हैं, डिट्टो. मतलब दिस इज हाइट्स ऑफ अनबिलीव, हाइट्स ऑफ नॉन ट्रस्ट. तो यार एक पे टिको तो सही. किसी अगर आप एक पे टिक जाओ ना, वो पक्का आपको पार करा देगा. मतलब
इतनी पावर तो उसके पास है कि तुम्हारा जीवन नैया पार करा दे। तो वो एक पे टिकना बहुत ज़रूरी है, कोई भी एक जो आपको ठीक लगता है, तो वहाँ से स्टार्ट होती है गेम। अब आपने बोला देखो नंबर 1 टिको, बिलीव करना, बिलीव की गेम है। अगर बिलीव करोगे तो पत्थर भी सोना है, ना बिलीव करो तो पत्थर ही है। ये बिलीव की गेम है टोटल का टोटल। अगर आप बिलीव करते हो कि मैं 1 महीने या 1 साल तक मैनिफेस्टेशंस में पूरा बिलीव करने को तैयार हूँ, आप बिलीव करते हो कि मैं बिलीव करने को तैयार हूँ, तो ये गेम स्टार्ट होगी। बिकॉज आप बिलीव ही नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे गेम आगे बढ़ेगी ना। तो इसीलिए या तो जिन लोगों ने बिलीव किया उनको सुन लो, पूछ लो, मिल लो जाकर, इजी हो जाएगा थोड़ा आपको, आपके बिलीव्स को चेंज। देखो आपके जो ओल्ड बिलीव्स हैं वो भी तो आपने ही बनाए हैं ना, पुराने कभी सुननी बात। घर में जो बातचीत हो रही होती है, पापा बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बार बार सुन रहे हो, टीवी में देख रहे हो बार बार। फॉर एग्जाम्पल एनी बिलीव, फॉर एग्जाम्पल आजकल जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कई बार शादी नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि उनका बिलीव किया कि शादी करना और शादी निभाना बड़ा मुश्किल काम है। अब ये मुश्किल काम है, ये इनको पता किस चला? अपने पेरेंट्स, उन्होंने कहीं ना कहीं देखा है, उन्होंने कहीं ना कहीं देखा है, सुना है, किन्हीं कपल्स को देखा है उन्होंने, या टीवी पे देखा, मूवी में देखा, घर में देखा, कई रिलेशंस में देखा, और उन्होंने बार बार सेम रिपीटेड चीज़ बार बार देखी है, सुनी है, सोची है, वो उनका बिलीफ बन गया है। अब बिलीफ कोई सच, देखो कोई भी बिलीफ रियल ट्रूथ नहीं है, वो आपका ट्रूथ है, इट्स योर पर्सनल ट्रूथ। ओके, आई ऑलवेज से दैट। जैसे आप कुछ भी बोलोगे ना और वो मुझे अगर रेजोनेट नहीं कर रहा होगा तो मैं या तो चुप हो जाऊंगी या वहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो ये बोल रहे हैं ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका बिलीफ है, और मेरा पॉइंट ऑफ और मेरा बिलीफ इससे डिफरेंट हो सकता है। 100%, बिकॉज एवरीवन हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यूज एंड बिलीव्स, एंड देयर इज नो द पॉइंट ऑफ व्यू एंड बिलीफ। तो हर कोई अपने अपनी जिंदगी जी रहा है वैसे ही ना। तो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में आई ऑलवेज से, अगर पुराने लिमिटिंग बिलीव्स आपको लिमिट कर रहे हैं तो एटलीस्ट अपने आप को कुछ एयर दो, कुछ ओपननेस दो फॉर न्यू बिलीव्स टू बी फॉर्म्ड। और नए बिलीफ को बनने में 30-40 दिन लगता है, तो टाइम तो दो अपने आप को। एंड मैम आप बोलते हो one of your big teachings is making a vision board. मैं vision board तो बना लूँगा, but फिर 1 दिन 2 दिन follow करके फिर छोड़ दूँगा। What is some advice that you can give me or people who do this कि हमारे से regularly ये follow हो? इसको कहा जाता है ब्रिंगिंग थिंग्स इनटू स्ट्रक्चर। ओके, ये एक लाइफस्टाइल ट्रेनिंग होती है जो हम देते हैं। अच्छा, जैसे मैं भी, आपने बोला बिल्कुल राइट है ये। आप विजन बोर्ड भी बना लोगे, देख लोगे, आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे, मैं पहले बता रही हूँ। ओके, डेली 8 मिनट उस चीज़ के बारे कि वो हो गई है, आपको मिल गई है, ये कल्पना करना, इसके लिए टाइम निकालना, एनर्जी निकालना, और खुशी खुशी करना, एक्साइटमेंट के साथ करना, जो रूल है। ये मैं बता रही हूँ, मोस्ट लोगों का लैप्स यहाँ ही आता है। तो इसीलिए जब हम अपने कोर्स बनाते हैं ना, तो कोर्स में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कि आपने रोज लिखना है, रोज पढ़ना है, रोज आपने ऑडियो बना के सुनना है जो हम सिखाते हैं, रोज आपने अपना विजन बोर्ड के सामने खड़ा होना है, विजुलाइज करना है। खुद नहीं कर सकते तो देन वी गिव यू, जिसको हम कहते हैं MPS, यानी कि मैजिक प्रैक्टिस सिस्टम। तो हमने सिस्टम बना रखे हैं कि आप इस सिस्टम में अंदर आ जाओ, ये हम करवाएंगे तुमसे काम, क्योंकि करवाना पड़ता है। लोग, सबको सपने पूरे चाहिए, ये इस पूरी प्रोसेस को करने में मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं। ट्रू 15 मिनट सुबह करना है, 15 मिनट शाम को, रात को करना है, सोने से पहले। जो लोग मान जाते, देखो जो सरेंडर करते हैं ना, और जो किसी टीचर के अंडर होते हैं, वो ही सरेंडर करेंगे, वो फिर कर भी लेते हैं, वो पा भी लेते हैं। मतलब ऐसे मैं आपको टेस्ट मगर बताऊं, आप हैरान हो जाओगे। 13 साल से शादीशुदा कपल है, बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा। उन्होंने हमारे साथ सिर्फ मुश्किल से, मतलब अभी 1 साल ही हुआ होगा, प्रेग्नेंट भी हो गई, बच्चा भी हो गया। 13 साल से जो नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं? क्योंकि आपने बस फॉर्मूला सही फिट किया अपनी एनर्जीज का। लोगों को अपनी मनचाही जॉब्स मिल रही हैं, लोगों के IPO लॉन्च हो गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी कर ली उन्होंने। मतलब हर चीज़ के अंदर इतने मैजिक्स होते हैं, पर स्ट्रक्चर मेंटेन करना, रेगुलर, देखो जिसको कहते हैं ना, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। तो निरंतरता मीन्स कंसिस्टेंसी तो चाहिए होगी ना मुझको, अभ्यास और निरंतरता। तो ये 2 चीज़ें तो संभालनी पड़ेंगी हमें, एंड वी हैव स्ट्रक्चर्स फॉर दैट। हम बडीज बना देते हैं, जैसे आपका बडी बना दिया किसी को, वो आपको होल्ड टू काउंट करेगा, आप उसको होल्ड टू काउंट करोगे, और आपको हम करेंगे दोनों को। ऑल्सो एक क्यूरियस सा क्वेश्चन आ रहा था मेरे दिमाग में, मैम, वाज कैन आई मैनिफेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, कि मैं अपने मॉम के लिए, अपने डैड के लिए मैनिफेस्ट करूं, या इट ओनली वर्क्स फॉर योरसेल्फ? सिंपल आंसर देती हूँ पहले। ओके,
कर तो सब कुछ सकते हो हाँ जी। है ना, परंतु देखिए पहले जमाने में क्या होता था, लोग ना एक दूसरे को फिजिकली डोमिनेट करते थे। Yeah. मतलब किसी को जो गुलाम बना लेना, फिजिकली डोमिनेट करना, फिजिकली हैरेस करना। Yeah. आजकल नया ट्रेंड आया है मेंटली हैरेस करना, हाँ. मेंटली डोमिनेट करना। Yeah. क्योंकि मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, दूसरे के दिमाग के साथ खेल रहे होते हो। Okay. तो आप जिस तरह से फिजिकल हैरेस करना भी एक पाप है, उसी तरह से मेंटल हैरेस करना भी एक पाप है। Okay. अगर वो उसका सपना, जैसे मैंने अब जब मेरी बेटी की शादी का टाइम था, तो वी वर लुकिंग फॉर हर लाइफ पार्टनर। तो मैं कोई नहीं होती हूँ अपनी बेटी के लिए एक लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करने वाली, पर अगर मुझे पावर पता है तो मैंने अपनी बेटी को साथ बिठाया, मैंने कहा कि आप शादी करना चाहते हो? उसने कहा हाँ। आप लाइफ पार्टनर लाना चाहते हो अपनी लाइफ में? उसने कहा हाँ। मैंने किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहते हो आप मुझे बताओ। उसने लिख के बताया, ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे उसकी नेचर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे फाइनेंसेस, ऐसी फैमिली। नाउ हम दोनों ने नेगोशिएट किया उसके ऊपर कि ये थोड़ा ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। Okay. क्योंकि मेरी कुछ अलग चॉइस थी, उसकी अलग चॉइस थी, तो उसने मान लिया। थोड़ा उसने माना, थोड़ा मैंने माना। फाइनली हमारी फाइनल लिस्ट बनी कि ये फाइनल है। तो मैंने कहा आप इसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा डू यू वांट मी टू आल्सो मैनिफेस्ट इट? उसने कहा हाँ। तो यानी कि अगर मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए लाइफ पार्टनर, तो वो उसकी फुल अलायंस के साथ, एग्री के साथ, और जो हम दोनों ने मान ली। ये नहीं कि मैं चाहती हूँ कि ऐसा ऐसा हो तो वैसा उसको मिलना चाहिए। हम ना जिंदगी में कई बार थोप ही रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ट्रू। मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर अपने ड्रीम्स थोप रहे होते हैं। ट्रू। और इसी वजह से एक बड़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक और सफोकेटिंग लाइफ जी रहे हैं लोग, क्योंकि ना तो खुद खुल के जी रहे हैं, ना उनको जीने दे रहे हैं। आई ऑलवेज बिलीव, प्लीज मैनिफेस्टेशन को एक और तड़पाने का फॉर्मूला मत बनाओ। आप अपनी जिंदगी जियो, अपनी जिंदगी को वहां तक लेके जाओ जहां पे ले जाना चाहते हो। नंबर एक इजी आंसर तो ये होता है कि प्लीज वर्क ऑन योरसेल्फ। फिर भी लोग बाज नहीं आते, तब भी नहीं मानते, तब भी मैं अपनी बेटी, पति, ये वो, फिर मैं समझा देती हूँ। देखो नंबर एक, ठीक है, उनसे प्रूफ करवा लेना विश को, ताकि कल को तुम्हें पाप ना चढ़े। ठीक है, तुम्हें लगता है तुम ज्यादा समझदार हो, उसको समझ नहीं है। मैं कहती हूँ अगर इतने समझदार होते ना तो अपनी जिंदगी कहाँ ले जाते तुम? खुद तो कुछ बन के दिखाओ मुझे पहले। ना मतलब कई बार औरतें बोलती हैं बच्चों के बारे में, बच्चा पढ़ता नहीं है, ये नहीं बना, वो उसका एग्जाम क्लियर। मैंने कहा तू खुद तो हाउसवाइफ है ना, तूने खुद क्या अचीव करा, पहले तो मुझे ये बता। तू अगर कुछ अचीव करे तब तू बताए कि तू उसको भी गाइड कर सकती है, उसको भी एम्पावर कर सकती है। दैट इज गुड। क्योंकि आई फील एवरी ह्यूमन ऑन दिस प्लैनेट इज बोर्न फॉर अ रीजन। नोबडी इज बोर्न टू बी जस्ट अ हाउसवाइफ और जस्ट अ होम मेकर। अरे यार, आपका और मेरा फिंगरप्रिंट सेम नहीं है। दिस इज साइंस। ये फिंगरप्रिंट ही तो है जो हमारा कोड है। हमारे लाइफ कोड यही है, यूनिक आइडेंटिटी जो हमारी है। तो ये सेम नहीं है, इसका मतलब आपका और मेरा पर्पस ऑफ लाइफ सेम नहीं है। अगर हम दोनों सिमिलर काम, बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं, सेम मीन्स बिल्कुल सेम, आइडेंटिकल। कई बार मुझे लगता है हाउस इतनी सारी हाउसवाइफ्स जो हैं सब आइडेंटिकल काम कर रहे हैं, तो ये इनका पर्पस ऑफ लाइफ तो हो नहीं सकता। और पर्पस ऑफ लाइफ हमेशा आपको खुशी देता है, अंदर से एक कंटेंटमेंट देता है जब आप वो कर रहे होते हो अपने पैशन को। तो ये अपने पैशन तो फॉलो कर नहीं रही हैं, सब कुछ और ही कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, फिर अपना पैशन फॉलो नहीं किया, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया नहीं। हाउ कैन यू इम्पोज समथिंग सो डोमिनेंटली ऑन योर चाइल्ड? कम से कम उसको तो बढ़ने दो अपने पैशन की तरफ, उसको तो जाने दो अपनी लाइफ के पर्पस की तरफ। यू शुड बी एम्पावरिंग रादर दैट वे टू योर चाइल्ड। एक माँ बाप का सबसे बड़ा फर्ज होता है अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स देना। कि मतलब अगर वो मुझसे पूछे कि पैसा कमाना कि नौकरी कमाना, मैं कहूँ कि ये खुश रहे, इतना समझदार बने कि इसको खुद पता हो कि क्या इसके लिए भला है, क्या बुरा है, अपने सही रास्ते ढूंढ पाए आगे जाते जाते। दिस इज द ब्लेसिंग आई गिव टू माई चाइल्ड, कि वो अपने आप अपने रास्ते ढूंढे और उसके पास इतना अक्ल हो कि सेम रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे जाए वो। तो आई थिंक दिस इज व्हाट एवरी पेरेंट शुड गिव, एंड इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग आवर मैनिफेस्टेशन ऑन देम, अपनी जिंदगी सफल बनाओ यार। True. Ma'am, the next topic that I wanted to talk about was breaking. यहाँ पे एक मैं आंसर ऐड करना चाहूँगी। Sure. अगर आपको क्लियर है कि उसका वाला आपको मैनिफेस्ट करना है, तो यहाँ पे जैसे कि आप कमाई क्या करते हो, पावर जो आपकी मैनिफेस्टेशन की सही जगह लगनी शुरू हो जाए। कमाई होती है ग्रैटिट्यूड। आप कितने ग्रैटिट्यूड करते हो, कितना टाइम करते हो, कितने डेप्थ में करते हो, इसमें भी हम सिखाते हैं। सिर्फ बोल के थैंक यू कर रहे हो, इट्स लाइक अ स्टील कॉइन, जो हमारे 1-2 रुपए वाले कॉइन्स होते हैं। सोच के थैंक यू बोल रहे हो, इट्स लाइक अ सिल्वर कॉइन। अगर
सोच कर, फील कर दिल की गहराई से थैंक यू बोल रहे हो, इट्स लाइक ए गोल्ड कॉइन. अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ योर ग्रैटिट्यूड मैटर्स. ठीक है, जो भी कमा रहे हो वैल्यू तो है ही, पर वैल्यू बढ़ भी सकती है. ना आपने कितनी कमाइयां करी हैं, अकॉर्डिंगली अब खर्चे करोगे आप, है ना. कुछ खर्चने जा रहे हो, अपने सपने पे खर्च रहे हो वन टाइम मतलब 1 किलो, फॉर एग्जाम्पल है, 1 किलो अगर अपने सपने पे खर्चोगे 1 किलो खर्चा होगा, आपकी कमाई होगा. अपने ब्लड रिलेशन में किसी के ऊपर खर्च रहे हो, ब्लड रिलेशन मतलब जैसे मेरा बेटा है, मेरे पापा है, मम्मी है, ये सब ब्लड रिलेशंस है, उस पे 2 टाइम्स डबल, यानी 2 किलो आपकी कमाइयों का ग्रैटिट्यूड के 2 किलो खर्च होंगे. ये बड़ी स्टूपिड सा एग्जांपल है, बट जस्ट टू मेक इट इजीली अंडरस्टैंडेबल. आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है, पर आप जानते हो उसको. जैसे पति है, पति मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है ना मेरे लिए, पर मैं उसे जानती हूँ. जैसे बहू है, दामाद है, फ्रेंड्स हैं, है ना, उनके लिए कोई मैनिफेस्ट कर रही हूँ 3 टाइम्स. आपकी ग्रैटिट्यूड की 3 टाइम्स कमाई लगेगी वहां पर. अब कोई ऐसे हैं जिनको मैं जानती ही नहीं हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ समाज का भला हो जाए, और मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं ब्लेसिंग नहीं दे रही हूँ, मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो यू नो अननोन पीपल के लिए भी कई लोग मैनिफेस्ट करते हैं, तो 4 टाइम आप कर सकते हो. पर आपके पास कमाइयाँ कितनी है? आपके पास कमाइयाँ हैं आधा किलो, और लगे वो 2 किलो लगाने में अपने बच्चे के लिए, तो लगेगा तुम भी भूखे रह जाओगे, वो भी भूखा रह जाएगा. तो अपनी यहाँ तो कमाइयाँ बढ़ा दो ना इतनी. जैसे कि ये थे साईं बाबा हैं फॉर एग्जाम्पल, या जीसस क्राइस्ट है, ये कितनों का भला कर सकते थे, क्योंकि इनके पास कमाइयाँ इतनी थी, भर भर की कमाइयाँ थी. जिनको नहीं भी जानते, जो ब्लड रिलेशन में भी नहीं है, जिनके बारे में कुछ नहीं, उनका भी भला कर सकते थे, क्योंकि इनके पास पावर इतनी पावरफुल थी ना. I think that makes sense also. Another topic that I wanted to talk about, ma'am, was breaking the loop, which is letting go of the limiting thoughts. How can one firstly know that there are some self-doubt or some negative thoughts in my mind that are limiting me from thinking big? See, आपके अंदर डार्क और लाइट दोनों है, ओके, एंड ओनली यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज योर लिमिटिंग बिलीफ, और दिस इज योर नेगेटिव एनर्जी, और दिस इज स्टॉपिंग यू. इज देयर अ वे टू नो व्हाट? हाँ, बिकॉज वे टू नो, देखो जैसे एक होपोनोपोनो नाम से एक प्रैक्टिस होती है, सर्कल होता है, लाइफ सर्कल है. इट्स कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं किसी की जगह पे, पर इट मेक्स सेंस टू मी, सो आई यूज इट. उसमें होता है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. 4 चीजें होती हैं सर्कल के अंदर ना, तो आप चारों पे प्रैक्टिस कर रहे होते हो. अब थैंक यू तो हम मैजिक बुक के थ्रू सिखा रहे हैं लोगों को, पावर बुक टेल्स यू अबाउट लव, परंतु आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ये आपके डार्क साइड्स होते हैं. आपने जिंदगी में कई बार आपने अपने आप के साथ या किसी और ने आपके साथ कुछ ऐसा किया होता है जो आप अपने लिए या उसके लिए या किसी भी वे में आप सॉरी फील करते हो. मतलब या तो आपको किसी से माफ़ी लेनी है या देनी है. प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी इज़ दैट जोन. और आपके जितने भी डार्क फेसेस होते हैं यहीं से स्टार्ट होते हैं. अगर आप लिमिटिंग बिलीफ भी आपको पता है आपके अंदर हैं, तो किसी ने कुछ किया आपके साथ या कह दिया आपको, जैसे किसी ने कह दिया यार तेरे बस का कुछ नहीं है, और आपने उस बात को पकड़ लिया, और अब आप इसको जाने भी नहीं दे रहे हो, उसको फॉरगिव भी नहीं कर रहे हो, लेट गो भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि यू आर अ लिमिटलेस बीइंग. यू आर लिमिटलेस, यू नो, इन अ सेंस कि आप कहीं भी पहुंच सकते हो, पर वहां पर पहुंचने के लिए आपको कौन रोक रहा है? कहीं ना कहीं आपने कोई बिलीफ बनाया किसी वजह से, और उसको होल्ड करके बैठ गए हो. तो यहाँ से हम पीछे की तरफ जाना शुरू करते हैं. नंबर 1, अपनी जिंदगी में जैसे ग्रैटिट्यूड आपको रोशनी की तरफ ले जाएगा ना, सॉरी, फॉरगिवनेस, लेटिंग गो, अपॉलॉजी, ये सब चीजें जो होती हैं, ये आपको अंधेरे की तरफ का रास्ता दिखाते हैं. कि आपने लिमिटिंग बिलीफ्स कैसे बनाए, क्या हुआ था आपकी लाइफ में, जैसे आपने कहा लूप होता है, तो वो पीछे पीछे जाने का रास्ता, और जब आपको दिखता है ये सारा रास्ता, तो आप ग्रैटिट्यूड का देखो साथ तो पकड़ा रखना पड़ेगा, तो आप अपने आप अंधेरे से बाहर आने का रास्ता ढूंढ लोगे. नाउ दिस इज व्हेन आई एम सेइंग इट मे साउंड अ लिटिल सिंपल और मे साउंड टेक्निकल, बट जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, जब हमारा भी शुरू होने लग रहा है 21 तारीख से नया कोर्स, इट ऑल अबाउट दिस ओनली, कि मतलब कि कैसे आप अपने अंधेरे में से रोशनी बनाकर बाहर आ सकते हो. एंड आपको अपनी लिमिट, जो आप कह रहे हो, जो आपने लिमिट बनाई है पैसों की दुनिया में या किसी भी दुनिया में, मुझे नहीं पता कौन सी दुनिया है वो, उसमें से बाहर आने के लिए आपको शुरू में ग्रैटिट्यूड की मंत्र प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी. ग्रैटिट्यूड इज द ओनली वे? ग्रैटिट्यूड इज द वे टू गो डीपर इनटू डार्कनेस. अच्छा, रोशनी के बिना आप अंधेरे में जा ही नहीं पाओगे ना. अच्छा, ये रोशनी तो आपको रास्ता दिखाएगी अंधेरे के अंदर जाने का.
सो दैट वे आपको पहले वो 1 महीने अपने प्रैक्टिस को कॉन्सेंट्रेट वहीं करना होगा. Okay. देन ओनली यू आर सफिशिएंट टू स्टार्ट गोइंग इनटू द डार्क जोन्स ऑफ योर लाइफ. और वो डार्क जोन्स आपको खुद दिखेंगे. आप वो प्रैक्टिस के दौरान खुद देखना, आपको खुद पता चलेगा कि कहाँ पे मेरी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, कहाँ पे मैंने अपने आप को होल्ड ऑन टू किया हुआ है, कहाँ पे That's true introspection in a way. This is how Yeah. it goes. Wow, that's very interesting. Can you share someone's example who made this journey with you, went through darkness with the light of gratitude and came back to be a completely different, changed and successful person? There's so many of them. I'm thinking किसका नाम pick करूँ. See, because sometimes the dark zones of your life only you know. You don't even want any. जैसे हमारे यहाँ पे तो confession boxes भी नहीं होते हैं ना. अच्छा. I'm very thankful to Christianity for having confession boxes. Yeah. या सिखिज्म में पंच प्यारे होते हैं, जहाँ पे आप जाकर बताते हो अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था. तो वैसे तो नहीं है सिस्टम में. तो लोग मोस्टली जो टॉक्सिन होता है या ये जितना भी गार्बेज होता है या जितना भी ये मतलब क्या बोलूँ, पॉइजन ही बोलूँगी एक तरह से, ये अपने अंदर ही रखते हैं, बताते ही नहीं है किसी को. इवन हमारी प्रैक्टिस में भी जो आते हैं वो ऊपर ऊपर का तो बता रहे होते हैं, मतलब मोस्टली दे आर डीलिंग विद इज प्रॉब्लम. पर उस प्रॉब्लम का जो डीप रीजन है वो उन्हें भी नहीं पता होता. ऊपर ऊपर से सफाइयाँ करी जा रहे हैं, पर अंदर तक जो नासूर है, जो गहराई में है, वो हमें ही कई बार ढूंढना पड़ता है या उनको एक लॉन्ग टर्म कोर्स के अंडरगो करना होता है ताकि उनको पता चले. तो अगर आप मुझसे पूछो कि किसकी, मतलब मैंने तो बहुत देखे हैं लाइफ में. जैसे जिस स्टार की मैं बात कर रही थी शुरू में कि आई वॉज डूइंग मेकअप ऑफ अ फिल्म स्टार, एंड आज जब आप उसको देखोगे, शी इज़ वन ऑफ द टॉप नॉच एंड अर्निंग वेरी वेल, वेरी रिस्पेक्टेड इन द इंडस्ट्री, और जहाँ से उन्होंने अपनी एक जर्नी की शुरुआत करी है. एंड उसके अलावा जैसे कि मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, हर किसी, देखो आप जितना मर्जी कर लो पर आपको अपनी ज़िंदगी में डार्क फेस स्कूल में मिले, पीयर में मिले, पता नहीं कहाँ मिलेगा. हम जितना मर्जी सेफ एनवायरनमेंट देने की कोशिश करें पर इट सीप्स इन, कहीं ना कहीं से आ ही जाता है. तो आई एम वेरी थैंकफुल टुडे, लाइक माई डॉटर, शी हैज़ अंडरगॉन हर जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एंड टुडे शी इज़ वन ऑफ द वेरी जो यंगस्टर्स के साथ काम कर रही है, स्पेशली स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एंड एम्पावरिंग देम टू लिव दैट लाइफ दैट दे वांट टू लिव. सो समवन आई रियली लुक अप टू, माई डॉटर, माई हस्बैंड. एंड इसके अलावा क्लाइंट्स में तो मैं कितनों के नाम लूँ, मतलब आप किसकी स्टोरी सुनाऊँ आपको. मतलब इन लॉस के साथ जहाँ 20-20 साल से झगड़े चल रहे हैं, डिवोर्स हुए पड़े हैं, डिवोर्स हुए लोगों ने रीमैरिज करी है. मतलब कि उनको पता चला है कि कैसे उनके ही लिमिटिंग बिलीफ्स उनको उनके स्पाउस के अंदर इतना कुछ बुरा दिखा रहे थे, और कैसे उन्होंने वापस उसको रिकन्सिडर किया, दोबारा से रिक्रिएट किया अपनी लाइफ को. तो देयर आर अनलिमिटेड एग्जाम्पल. व्हाई डोंट यू गो टू शुक्राना ग्रैटिट्यूड यूट्यूब or Instagram, and there's so many people sharing their life there. Yeah. So that will be one thing you can really start looking, because देख के कई बार सुनकर, और जैसे एक कभी परसों ही बता रहे थे, कर्जों में थे, 10 साल से किराए के घर पे रह रहे थे, और उन्होंने सिर्फ 2 महीने प्रैक्टिस करी है लगकर. पर ये है कि पूरा दिन वो सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही प्रैक्टिस कर रहे हैं. जो भी काम कर रहे हैं उसमें हर चीज़ में शुक्राना. और 2 महीने के अंदर उन्होंने अपना घर, अपना मतलब वो घर की वीडियो भेजी उन्होंने कि उन्होंने घर खरीद लिया. जो भी प्रॉफिट्स हुए उनको, जैसे भी उन्होंने काम किया, उनके मम्मी पापा जो किराए के घर पे रह रहे थे इतने सालों से, वो उनको गिफ्ट करना चाहते थे. मम्मी पापा का शुक्राना किया. वो रो के बता रहे हैं कि मुझे पहली बार पता चला कि मेरी पावर मेरी मम्मी पापा के साथ जुड़ी हुई है. और जैसे ही मैंने शुक्राना करना शुरू किया, मेरी सारी चीज़ें रातों रात पलटनी शुरू हो गई. So this is something which is very magical, and how your own beliefs make them villain in your life, and how once you transform your beliefs, how they become the source of power in your life. Wow. And ma'am, the last topic that I wanted to talk about is energy. How energy shapes everything. We spoke about it earlier as well. But from a personal experience, let's say enter a room and I see few people, and I can sense an energy shift. If I'm talking to someone else, I have a different energy with them. If I'm talking to someone else, I have a different energy with them. How do these vibrations, these energies communicate with each other? Like, it's so fascinating and interesting in a way that I fail to understand it. See, on a quantum level, everything is energy, as I said.
एंड एनर्जी इज़ लाइक हर चीज़ में, हर इंसान में, हर सुर में, हर म्यूज़िक में एनर्जी ट्रैवल कर रही है। तो एनर्जी को समझने के लिए सबसे इजी भी होता है फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशंस। फॉर एग्जांपल है, अगर आप एफएम कभी सुनते हो, मुझे पता नहीं जनरेशन एफएम सुनती है कि नहीं सुनते हैं कभी। वो रेडियो जैसा होता है ना, तो पहले जमाने में तो बटन घुमा के हम रेडियो फ्रिक्वेंसी सेट इन करते थे, आजकल बटन दबा के कर रहे हैं। पर अगर आपने इंग्लिश के गाने सुनने हैं तो आप एक पर्टिकुलर चैनल पे जाओगे, एक पर्टिकुलर दूसरे, जैसे आप 98.5 पे आओगे तो एक तरह के गाने बज रहे हैं, आप 102 पॉइंट विविध भारती पे जाओगे तो एक अलग तरह के गाने बज रहे हैं, है ना। कहीं पे सिर्फ इंग्लिश है, कहीं पे सिर्फ पंजाबी है, कहीं पे सिर्फ न्यूज़ चल रही है, या कहीं पे सिर्फ भजन चल रहे हैं। अब आप सपोज भजन वाले चैनल पे लॉग इन हो और रोई जा रहे हो, अरे यार यहाँ पे यो हनी सिंह क्यों नहीं आ रहा, कब से भजन ही गाई जा रहे हैं, भजन ही गाई जा रहे हैं। तो पागल तो तुम हो ना, तुमने गलत चैनल पे लॉग इन किया हुआ है। अगर आपने यो हनी सिंह सुनना है, इंग्लिश के गाने सुन रहे हैं, चेंज द चैनल। तो यानी एनर्जी या फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट करो। तो आप एनर्जी और फ्रिक्वेंसी कहाँ है, आपके अंदर है। आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना होगा एंड यू विल बी अमेज्ड। जो अभी आपको लोग मिल रहे हैं या हालात मिल रहे हैं, ये सब के सब आपके सामने से हटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपना चैनल शिफ्ट कर दिया है, अपनी एनर्जी शिफ्ट कर दी है। अब ये लोग कहीं और चले जाएंगे, कहीं और कहीं अपनी एनर्जी लगाएंगे, पर आपके साथ नहीं लगाएंगे। नाउ यू विल अट्रैक्ट जो इस वाले चैनल पे जो गाने बज रहे हैं, अब आपको ऐसे लोग और ऐसे ऐसे हालात मिलने शुरू होंगे। तो दिस इज हाउ आई टीच, चेंज योर फ्रिक्वेंसी। बाहर का मत्था मार रहे हो जाकर। ट्रू। एंड पहले तो आई थिंक एनर्जीज इन पर्सन ट्रांसमिट हो जाती थी, बट नाउ I think energies are being transmitted through social media, through your phone so much. And हमारी generation, Gen Z, we are totally consumed by social media and content. We feel so many different types of energies. What advice would you give us to protect our energy, to protect our peace? पहली बात तो ये सोशल मीडिया में जो आप कंज्यूम कर रहे हो, ये तो आपकी चॉइस है ना। True. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, मेरी टीम काम करती है, तो क्योंकि मेरे को लगता है वो नंबर एक मुझे कैसे मेरे को पॉजिटिव क्या दे रही है वो। मतलब अगर मैं पहले जमाने में, पहले पुराना वाला फैशन में, मतलब किसी ने अच्छी ड्रेस पहन ली और आपको लग रहा है मुझे भी ड्रेस चाहिए, जरूरत नहीं है, वार्डरोब भरा पड़ा है अंदर, पर आपको वो ड्रेस चाहिए जो उसने पहनी हुई है, तो ये तो वेस्टफुल बेवकूफ वाली हरकत कर रहे हो ना आप। तो सोशल मीडिया, अब जैसे अगर मैं अभी जाती हूँ तो कभी कोई अच्छी रील आ जाती है, बहुत अच्छा सीखने को मिल जाता है, कुछ अच्छा जानने को मिल जाता है, तो अपने आप को या तो लिमिट करो या फिर अपने टाइम को लिमिट करो। नहीं तो जैसे अभी मेरे दामाद जो मेरे और बेटी है, वो दोनों कुछ कोर्स कर रहे हैं इस समय, तो फर्स्ट थिंग दे वर टोल्ड टू डू इज कि अपने आप को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तीनों से ऑफ करो। उन्होंने तीनों डिलीट करे हैं। अगर वहां पर उनको कुछ पोस्ट भी करना होता है तो वो फिर अपने असिस्टेंट के थ्रू कराते हैं। मतलब आपने अपना टाइम और अपनी एनर्जी वहां वेस्ट नहीं करनी। तो आपके लिए अगर आपका सपना इतना जरूरी है तो एनर्जी को कंजर्व करना या ग्रो करना, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। And last question of the podcast, man. मेरा पर्सनल क्वेश्चन था, is नजर रियल? अगर आप भगवान को मानते हो तो शैतान है भाई। ये मतलब है ना फिर। या तो आप भगवान को ना मानो तो शैतान भी नहीं है। मतलब आप इंसान हो ना, तो आपको दोनों मैंने बताया ना, जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो डुअलिटी की दुनिया है। यहाँ पे हर चीज के दो आयाम है, डबल डायमेंशन है। अगर हाथ का ये पार्ट है ना तो ये भी है, तो हर चीज के दो आयाम है ही है। तो अगर आप भगवान को मानते हो तो मान लो यार शैतान, हाँ आपको शैतान चाहिए नहीं है वो अलग बात है, पर वो है। ठीक है। उसी तरह से अगर आप दुआ को मानते हो तो बद्दुआ भी है। अगर आप बुरी नजर को मानते हो तो अच्छी नजर भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जितने प्रैक्टिशनर्स इकट्ठे होते हैं तो हम कहते हैं चलो सब इकट्ठे हो जाओ, हम ऑफलाइन भी मिलते हैं और सब एक दूसरे को अच्छी नजर लगाओ। तो हमारे प्रैक्टिस होती है प्रॉपर अच्छी नजर। तो हाँ, अच्छी नजर मतलब कि दूसरे का कोई सपना पूरा हुआ, किसी के बच्चे का बहुत अच्छा एडमिशन हो गया, किसी कमाइयाँ, किसी ने नया घर लिया, तो हम कहते हैं नया घर की फोटो दिखाओ हमारे को, हम तुम सबको अच्छी नजर लगाएंगे। तो इसको कहा जाते हैं दुआएं देना, ब्लेसिंग्स देना। तो दुनिया में ना बुरी नजर ने बड़ी ज्यादा फुटेज खाई हुई है। बुरी नजर है, उसमें गलत बात क्या। अब आप मतलब देखो, आप ये मुझसे पूछ सकते हो बुरी नजर से कैसे बचें, मैं आपको बता दूंगी। अपना ऑरा शील्ड इतना पावरफुल कर लो कि बुरी नजर तुम्हारे शील्ड को पेनिट्रेट ही ना कर पाए, उसी को क्रॉस करके निकल जाए। वो कैसे, अगर आप इतने पॉजिटिव हो, इतने बुरी नजर में अंधेरा,
गुड नज़र मीन्स रोशनी. हम किसी को दुआएं देते हैं, रोशनी देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, वो भी घूम के हम तक आएंगी. हम किसी को बुरी नज़र दे रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं, वो भी घूम के हम तक वापस आएंगी. तो हम लोगों को सिखाते हैं प्रॉपरली. तो अगर आपने बुरी नज़र से बचना है तो अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कर लो. वो कैसे? अपने आप को गुड एनर्जी में रख के, गुड एनर्जी में रखो. अगर वो आपको पेनिट्रेट कर पा रही है तो उसको, मतलब कहते हैं ना, सड़क के ऊपर अगर आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ियां चल रही हैं, अपनी तो ठीक चलाओ तुम. अपनी ड्राइविंग पे, अपने स्किल के ऊपर काम करो पहले. तो आपके 90% तो आप यहीं पे बच जाओगे. तो अपनी एनर्जी पे काम करके अपने सर्कल को और ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं, एक हमारा प्रोग्राम है ब्रह्म कवच. ब्रह्म कवच मतलब अपने आप को कवच के अंदर शील्ड कर लेना. तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका इतना पॉजिटिव हो जाए कि आप लोग जहाँ जाओ लोगों को भी अच्छा लगे आपसे मिलकर. उनको पॉजिटिव फील हो आपके साथ बैठना, बातें करने में. तो ये मैग्नेटिक फील्ड का ही काम है. और कहीं पे नेगेटिविटी हो तो आपको भी फील हो जाए कि यहाँ से उठ जाओ. क्योंकि आप वरना वेस्ट करोगे अपना ऑरा वहाँ पर. या कोई आपकी तरफ नेगेटिव चीज फेंक भी रहा है तो आपका ऑरा उसको रिफ्लेक्ट, उसको वापस रिपल्स कर दे. तो ये आपका काम होता है. तो और ये डुएबल चीजें होती हैं सारी की सारी. Thank you so much, Ashmeen ma'am, for joining me, for taking out the time. And this is so good because the things that you have explained in such simple manner for the audience that I have, I think they'll be able to relate. And hopefully they'll join you. If you could tell them where they should join you and be a part of the foundation, the education, that will also be great if you'd like to tell them. See, the only thing, whether you do it at your own or with your buddy group, that's called the Magic Book by Rhonda Byrne. मतलब Rhonda Byrne वाली ही मैजिक बुक करनी है. ओके, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी करो. अगर आप हमारे साथ भी जुड़ते हो, हर महीने हमारा ग्रुप स्टार्ट होता है एंड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. सारे के सारे प्रैक्टिशनर्स उसमें जुड़ते हैं एंड उससे एक रेगुलरिटी बनी रहेगी, क्लैरिटी बनी रहेगी. सो जस्ट फोकस ऑन द मैजिक बुक. Rest of the things will open up at its own self. And ma'am, sorry, but I wanted you to do one last thing. थोड़ा Gen Z है, but if you could just write your name on one lens and sign it on the other, this is some kind of a memory that I'll have. We'll put it on the Hall of Shades. लगाना तो नहीं है ना वो? एक आता नहीं आपका एक म्यूजिक आता है. I won't tell you to put it, but यहाँ पे चश्मा चमकता है, मुंह में भी कुछ सिगार चमकता है. नहीं. करना क्या है, मुझे नाम लिखना है. एक लेंस पे नाम लिख दो प्लीज और दूसरे लेंस पे साइन कर दो. एंड आई विल कीप दिस एज मेमोरी कि मैंने मैम के साथ एक पॉडकास्ट किया था एंड ऑलवेज चेरिश इट. सो yeah, that was the podcast with Mrs. Ashmeen Munjal, and I hope you guys enjoyed it. And be spiritual, take her learnings and join. And make your all dreams come true. Make your dreams come true. Join the education. And yeah, this is Adhiraj Sethi signing out. Love and peace. See you in the next one.